So let's start the second session of chapter number 1 related to case studies. In session 1, we have already completed the 5 case studies related to a single topic, the most important topic of chapter number 1, primary and support activities. Now, the remaining 5 studies, we have to cover the 4 topics: advantages, disadvantages, and one new concept, value shop model. These 3 concepts will cover in a single case study available in our study material, and in our notes in the PDF I have provided, it is case study number 6. Okay. Apart from that, there are 2 more concepts in this chapter: superior performance and competitive advantage. We are having 2 case studies related to that topic. And the last topic is Porter's 5 forces model. In that also we are having 2 case studies. So I am starting today's session with advantages, disadvantages, and value shop model that will be applicable for case study number 6 in our PDF. So please refer the page number 3 available in the PDF in the heading topic 2, advantages and disadvantages. So I am starting. I am giving you a basic idea. I have already told in the first session that we will not study each and every concept in depth. This is not about the explanation session. This is about how to deal with the case study and case scenario. So we are majorly focusing on solving the case study and case scenario. I will 100% assume that the student watching this lecture have the basic knowledge of advantages, disadvantages, and value shop model. Apart from that, whenever I will start a new concept, I will definitely have a quick recap of that concept so that you will be comfortable while dealing with the case studies related to that topic. So let's start the advantages and disadvantages. Total, the value chain analysis provides us the 4 advantages. The very first advantages is hidden in the definition part itself. जो वैल्यू चेन एनालिसिस की डेफिनेशन है उसी में एक एडवांटेजेस हिडन है, and that the biggest advantage of value chain analysis is it helps us to identify the non-value added activity. The activities which do not provide any benefit to the customer. First of all, value chain analysis help us to identify such activity, and thereafter it will help us in minimizing or eliminating such activity from our value chain so that our profit margin can be improved. The very first benefit of value chain analysis. Second benefit of value chain analysis is low cost advantage. There is a topic in this chapter, competitive advantage. Competitive advantage to any organization emerge from 2 sources. I repeat, competitive advantage to any organization emerge from 2 sources. It can be a low cost advantage, it can be a differential advantage, and in some organization, those organizations are having both the advantages. तो सबसे पहला जो एडवांटेज है आपका लो कॉस्ट एडवांटेज, इसके हम 2 तरीके से इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. पहला तरीका है लो कॉस्ट एडवांटेज हमारे पास है, हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लो कॉस्ट एडवांटेज? मार्केट में जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, वही क्वालिटी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मार्केट के कंपैरिजन में हमें कॉस्ट कम आती है. क्यों कम आती है? हमारे पास एक्सेस टू लो कॉस्ट रॉ मटेरियल हो सकता है, हमारे पास दूसरे एडवांटेज हो सकते हैं सब्सिडी के, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो लो कॉस्ट है, उसके कारण हमें बेनिफिट मिलता है. एडवांटेज कैन कम फ्रॉम एनी वे, बट द फैक्ट इज यू आर हैविंग low cost advantage because the competitor is producing the same product with same quality at a slightly higher cost. So this low cost advantage will give you the extra edge to face the competition whenever the sale price goes down. So ये benefit हो सकता है आपका low cost advantage का. हो सकता है low cost advantage आज मेरे पास हो, ये भी हो सकता है कि low cost advantage मेरे पास ना होके मेरे competitor के पास हो, तो भी वैल्यू चेन एनालिसिस आपको बेनिफिट करेगा कि इंडस्ट्री में अगर कोई भी प्लेयर उसी क्वालिटी को अगर कम प्राइस पे बना पा रहा है, तो उसके पास ऐसा क्या लो कॉस्ट एडवांटेज है, आप अपने सोर्सेज से पता लगाइए और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए. यह भी एक प्रकार का बेनिफिट हो सकता है आपको लो कॉस्ट एडवांटेज का.
तो पहला एडवांटेज आइडेंटिफाइंग द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, सेकेंड एडवांटेज लो कॉस्ट एडवांटेज को आइडेंटिफाई करके उसको सस्टेन करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का दूसरा तरीका हो सकता है डिफरेंशियल एडवांटेज। कस्टमर को लगता है, हमें नहीं, कस्टमर परस्यूड दैट आवर प्रोडक्ट इज ऑफ हायर क्वालिटी, इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजी या हैविंग लो रिस्क एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। तो मार्केट के कंपैरिजन में फिर हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलती है कॉम्पीट करने के लिए। तो यहां पे भी वही सिचुएशन है, हो सकता है ये एडवांटेज हमारे पास हो तो हम इसको आइडेंटिफाई करके और एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है ये एडवांटेज हमारे कॉम्पिटिटर के पास हो तो हम वहां से लर्न करेंगे कि वो ऐसी क्या चीज दे रहा है, क्यों कंज्यूमर के माइंड में ये चीज है कि वहां पे लो रिस्क है, कुछ ना कुछ तो उसने अपने प्रोडक्ट में किया होगा, तो वहां से सीख कर फिर वही चीज हम अपने यहाँ पे कॉपी करना चाहेंगे। तो ये भी डिफरेंशियल एडवांटेज का फॉर्म हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोर कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में ऐसा यूनिक फीचर है जो आपका कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर सकता। जैसे बेटा कोई भी फैकल्टी का आप लेक्चर लेते हो, कोई भी सब्जेक्ट के, तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऑफ फैकल्टी का इतना अच्छा होता है जो आपको आपसे लिंक करता है कि नहीं यार ये चीज मुझे इस फैकल्टी से मिलेगी, तो अपार्ट फ्रॉम न्यूमरस चॉइसेस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप वो वाली फैकल्टीज के लेक्चर परचेज करते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज कोर कॉम्पिटेंसी। जब भी मुझे कोई सर्च करना होता है मैं गूगल पे जाता हूं, क्यों? गूगल के पास कोर कॉम्पिटेंसी कि उसका जो सर्च है वो बहुत रिफाइन मैनर पे मेरे पास आता है दूसरे सर्च इंजन के कंपैरिजन में। तो हर चीज के बाद अगर मैं टेलीग्राम यूज कर रहा हूं तो उसका एक कुछ ना कुछ यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी होगी जो व्हाट्सएप प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है या दूसरा कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज कोर कॉम्पिटेंसी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर आपके पास है तो आप उसको आइडेंटिफाई करो और डे बाय डे उसको और पॉलिश करते जाओ ताकि कस्टमर उसको और भी वैल्यू करे। तो चारों एडवांटेजेस है हमारे वैल्यू चेन एनालिसिस के, जो हमें मदद करता है आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर एडवांटेजेस है तो उस मेथड के डिसएडवांटेजेस भी डेफिनेटली होते हैं। पहला डिसएडवांटेज और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर वैल्यू चेन एनालिसिस का है, वैल्यू चेन एनालिसिस का जो मॉडल है दैट बेसिकली डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट कैन नॉट बी 100% अप्लाइड टू द सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि वैल्यू चेन एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द सेक्टर, ऑल द इंडस्ट्री। इट इज नॉट बेसिकली डिजाइन फॉर सर्विस सेक्टर। सेकेंड, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व है। एक्टिविटीज को पहचानो, क्लासिफाई करो, फिर मिनिमाइज एलिमिनेट करने की कोशिश करो, फिर उसको सस्टेन करो, तो टाइम कंज्यूमिंग भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। बट इट्स अ जनरल पॉइंट बेटा, डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है इसलिए अपन ये चीजें लिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम सेविंग। रियली में आप देखेंगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कोई भी मेथड अगर इजीली अप्लाइड हो जाए तो मान के चलेगा उस मेथड से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो चीज टिपिकल होगी वही चीज अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ही आपको मार्केट में एक एक्स्ट्रा एज मिल पाएगी। सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज लिखना होता है तो इस टाइप के पॉइंट आते हैं, एज सच इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि सर्विस सेक्टर में अप्लाई नहीं हो सकता। द थर्ड डिसएडवांटेज इज रिलेटेड विद वैल्यू नेटवर्क। व्हाट इज वैल्यू नेटवर्क? Value network is a group of individual or a corporation that will work together that in a such a way that benefit will be provided to each and every member of that team. तो कभी कभी ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस होता है शेल्फिश हो जाता है, जिसके कारण हमारे को जो वैल्यू नेटवर्क का बेनिफिट मिलना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो हमें नहीं मिल पाता है। खासकर अगर वैल्यू चेन एनालिसिस को आप ट्रांसफर प्राइसिंग, जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, उसके साथ लिंक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फिर वैल्यू नेटवर्क वाला इश्यू यहाँ पे क्रिएट होता है। तो दिस आर द एडवांटेजेस, दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। लेकिन जो अपन केस स्टडी नंबर 6 करेंगे उस केस स्टडी में आपको एक और टॉपिक मिलेगा एंड दैट इज वैल्यू शॉप मॉडल। चैप्टर का नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस। जो मेन कंटेंट है चैप्टर नंबर 1 का, हेडिंग तो है इंट्रोडक्शन टू एससीएम, लेकिन जो मेन कंटेंट है दैट इज रिलेटेड विद वैल्यू चेन एनालिसिस। तो एकदम लास्ट के पेजेस आप देखेंगे अपने स्टडी मटेरियल के तो आपको एक और कंसेप्ट मिलेगा, वैल्यू शॉप मॉडल, दैट हैज बीन आस्क्ड इन केस स्टडी नंबर 6 इन आवर पीडीएफ। So what's the basic difference between value chain and value shop model?
The basic difference is with ideology, primary objective. When we talk about the value chain analysis, it focus on value addition. Please pay attention, beta. This is a very important concept. What's the difference between value chain and value shop model? Value chain analysis focus on value addition. That is how we can provide more and more value to our customer by incurring the same amount of cost. This is very important. By incurring the same amount of cost, how we can provide more and more value that can be perceived by the customer. This is the basic objective of value chain analysis. While the value shop model has altogether different objective, it has the objective to provide solution of the problem currently faced by the customer. वापस बोल रहा हूं मैं, वैल्यू शॉप मॉडल का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उसका कोर आइडिया है कि आज की तारीख में कस्टमर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं उससे रिलेटेड उसको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं ताकि उसकी वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए. सो वैल्यू चेन फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, वैल्यू शॉप मॉडल फोकस ऑन resolving the problem currently being faced by the customer. So there is a very big difference between the two regarding in this matter. This value shop model is exclusively designed for the service industry. Just we have studied that the biggest advantage of value chain analysis is it cannot be applied as it is in the service industry. So for service industry, there is altogether a different model known as value shop model. Value shop model process. This is second important point. The first important point is difference between value chain and value shop. The second important point is the concept, how it works. It's a iterative process. Value shop model is a iterative process. Iterative का मतलब होता है repeatedly. यह एक सेट ऑफ एक्टिविटीज को जनरली रिपीट करते रहता है, ट्रायल एंड एरर, जब तक हम एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन अपने कस्टमर के लिए डिराइव ना कर पाए. ठीक है. वैल्यू चेन एक्टिविटीज में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक्टिविटीज को दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी. आप वैल्यू शॉप मॉडल में भी देखेंगे तो भी वहां पे दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी. सपोर्ट एक्टिविटी के जो क्लासिफिकेशन होते थे वैल्यू चेन में, सेम क्लासिफिकेशन आपको यहां पे भी मिलेगा वैल्यू शॉप मॉडल में. मतलब सपोर्ट एक्टिविटीज की अगर अपन बात करेंगे तो वैल्यू चेन और वैल्यू शॉप मॉडल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है वैल्यू शॉप मॉडल में एज कंपेयर टू वैल्यू चेन एनालिसिस. इसकी अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज देखेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज, द वेरी फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस है कि जो प्रॉब्लम मेरा कस्टमर फेस कर रहा है मैं उसको कैसे रिजॉल्व करूं, उसको क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं. तो द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ वैल्यू शॉप मॉडल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सर्च करना, फिर डिफरेंट चॉइसेस में से कोई एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करके देना, आफ्टर दैट उसको कंट्रोल और इवेल्युएट करना. दिस आर द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द वैल्यू शॉप मॉडल. ओके बेटा, होप यू हैव रिकॉल्ड ऑल दिस कंसेप्ट. अब अपन चालू कर सकते हैं. मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये केस स्टडीज का सेशन है. आप ये मत मान के चलिएगा कि जो भी केस स्टडीज है उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे इन डेप्थ बताऊंगा. कंसेप्ट मैं जरूर आपको क्लियर करूंगा, लेकिन इन अ वेरी फास्ट मैनर, जैसा अभी अपन ने किया है. तो एक बेसिक आइडिया मैं हमेशा मान के चलूंगा, जो भी 20 आवर का सेशन है, कि आपको एक बेसिक आइडिया अवेलेबल है उस टॉपिक का. फिर मेरा पर्पज होगा केस स्टडी का जो एक फोबिया बना हुआ है, कैसे आप उसको ओवरकम कर पाओ, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है केस स्टडी और केस सिनेरियो में आंसर देना. अगर आप एक स्ट्रक्चर वाइज जा रहे हैं तो इट्स वेरी इजी. आइए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 6 में, आई थिंक इट्स अवेलेबल इन पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 6. आपको स्टडी मेट में ये पेज नंबर 13.11 में मिलेगा, स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 13.11 में, और अपने पीडीएफ में पेज नंबर 13 में आपको मिलेगा. एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे किया था बेटा कि जब भी अपन केस स्टडी चालू करेंगे तो आप एक काम करिएगा, मेरे समझाने से पहले एक बार केस स्टडी को आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू पढ़िएगा. न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब 3 से 5 मिनट में जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको मैं न्यूज़पेपर रीडिंग बोलता हूं, कि आपको एक बेसिक आइडिया आता है कि इस केस स्टडी में क्या क्या कंटेंट हमें दिया है और क्या क्या कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं.
Don't expect too much from the newspaper reading. It will only help us to understand 15 to 20% of the content given in the case study. Okay, so let's start case study number 6. तो मैं चाहूंगा आप लेक्चर पॉज कर दीजिए बेटा, पहले पूरी केस स्टडी पढ़ दीजिए, फिर लेक्चर आप रिज्यूम कीजिएगा, फिर मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं. सबसे फर्स्ट पैरा हमारे को बताता है कि हमारी कंपनी का नाम WSS है, हम सोलर डोमेस्टिक वाटर हीटर बनाते हैं. अब ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे जो डिजाइनर है वो फोकस करते हैं ताकि कस्टमर को जो प्रॉब्लम आती है वाटर हीटर से रिलेटेड उसको हम कैसे रिजॉल्व करें. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पैरा का. पिछले 4 सालों में अगर अपन देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट और हमारा मार्केट शेयर बोल रहा है कंटिन्यूअसली कम हो रहा है. अब सेकेंड पैरा आपको पूरा मॉडल बताता है. जो फर्स्ट पैरा है इसमें यह बताता है कि हमारे हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट कस्टमर की साइट पर जाते हैं, उसकी पूरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक कस्टमाइज्ड उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड. एक बार मैं चाहूंगा अपन इसको पढ़ भी लेते हैं. ऑलरेडी आपने एक और बार पढ़ लिया है, एक और बार पढ़ लीजिए बेटा. Company has highly qualified and skilled expert who visit customer location to identify and design the appropriate heater as per customers requirement, ताकि हम उनको इफेक्टिव सॉल्यूशन दे पाए. तो जब ये एक्सपर्ट एक इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम, तो फिर ये लेबोरेटरी में आते हैं, इसकी एक डिजाइन तैयार करते हैं. जब डिजाइन फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद बोला गया हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं. जब मैन्युफैक्चर हो जाता है तो फिर हम इंस्टॉल करके भी हम ही आते हैं. ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन के बाद एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हम लेते हैं. तो आप देखेंगे तो मल्टी फेफेट इनका वर्क है. सबसे पहले हम कस्टमर के यहाँ जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं. फिर सेकेंड स्टेज, जब हमें प्रॉब्लम पता लग जाती है तो हमारा जो हाईली एक्सपर्ट टीम है वो उसकी डिजाइन सोचती है. जब डिजाइन अप्रूव हो जाती है, उसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है, तब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उसको सेल करते हैं और उसको इंस्टॉल भी करते हैं. इंस्टॉल करने के बाद हम जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भी अपनी सर्विस ऑफर करते हैं. अब नेक्स्ट पैरा ये जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरा है. ये बता रहा है कि आज की तारीख में कस्टमर ये तो मानता है कि हमारा जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का तरीका है वो ऑल टुगेदर यूनिक है, वो कस्टमर बिल को परफ्यूड करता है एज अ वैल्यू एडिशन, लेकिन हमारी कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ज्यादा है. लेकिन एक अच्छा पॉइंट इसमें यह है कि हमारा कस्टमर अप्रिशिएट करता है कि हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे में सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी है वो किसी और में नहीं है. तो मार्केट में बने रहने के लिए पैरा हमें बोलता है कि हमने सेल प्राइस कम कर दिया, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटीज बहुत सारी हमारी, उनमें से 2 एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और जो इंस्टॉलेशन एक्टिविटी है उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली दूसरे के मुकाबले हमारी ज्यादा है. तो पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई ये सिचुएशन हम ज्यादा समय तक कंटिन्यू करेंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे. तो कुछ पार्टनर्स का कहना है कि हमें वैल्यू चेन एनालिसिस लगाना चाहिए, जबकि एक सीनियर पार्टनर है डब्ल्यू, इसका कहना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस में बहुत सारे डिसएडवांटेज है जिसके कारण आप ये मॉडल नहीं लगाएंगे. क्लियर हो गया बेटा? आगे से अपन केस स्टडी को कैसे पढ़ेंगे. सबसे पहले आप लेक्चर को पॉज कर दीजिएगा, पहले आप अपने लेवल पे केस स्टडी पढ़िएगा, फिर मैं एक एक पैरा आपको समझाते जाऊंगा कि उसमें क्या है. फिर भी अगर आपको एक रीडिंग लगती है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक और रीडिंग लगाइए, क्योंकि जितना माइन्यूटली आप केस स्टडी को पढ़ेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा. अब मैं आता हूं बेटा इसके रिक्वायरमेंट पार्ट में. पहला रिक्वायरमेंट पार्ट बोला है हमें डिस्कस करना है बेनिफिट जो हमारी कंपनी को होगा अगर हम वैल्यू चेन एनालिसिस लगाते हैं. फिर हमें उसके क्रिटिसिज्म बताना है कि माइकल पॉटर ने जो वैल्यू चेन एनालिसिस दिया है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. एंड लास्ट हमें बताना है क्या वैल्यू चेन एनालिसिस के अलावा और कोई हमारे लिए सुटेबल मॉडल आपके पास अवेलेबल है क्या. अब जब आप देखेंगे बेटा ये तीनों रिक्वायरमेंट, all these 3 requirement are not a theoretical requirement. यहां पे आप तीनों रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो उसने क्वेश्चन से आपको लिंक करने बोला है. तो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था हमें केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए 3 चीजें चाहिए होता है. सबसे पहला स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस
जो जस्ट अभी अभी अपन ने इस क्वेश्चन के पहले तैयार किया था, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वैल्यू शॉप मॉडल। सेकंड, क्वेश्चन से आपको फिर इंफॉर्मेशन उठाना है, ये भी आपको लगेगा ये आपके 50% कवर करता है एरिया। अब बचा हुआ जो 50% है दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जो आपका स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैसे कन्वर्ट करते हो। क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखोगे, रिक्वायरमेंट पार्ट में क्लियर कट आपको जो भी देना है, चाहे रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 हो, चाहे रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 हो, चाहे रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 3 हो, all the three requirement part requires the application skill, there is no theoretical। अगर आपने simply advantages और disadvantages लिख दिया बेटा, you will not get even a single mark, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, उसने क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा है कि आप हमें एडवांटेजेस बताइए इस कंपनी से, आप हमें डिसएडवांटेजेस बताइए, और इसके अलावा और कोई मॉडल है तो आप वो हमें सजेस्ट कीजिए। तो देखिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसके सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर केस स्टडी नंबर 6 का। हमें यहां पे टोटल 3 चीजें बताना है, बेनिफिट, क्रिटिसिज्म और वैल्यू शॉप मॉडल। सबसे पहले बेनिफिट्स हम बिल्कुल वही लेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे पहले आप यही थ्योरेटिकल नॉलेज लिखोगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस help us to bifurcate the activities into value added and non value added activity. Once non value added activity has been identified, it is thereafter minimized और eliminated। ये theoretical knowledge लिख दिया आपने। अब आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है। चूंकि कंपनी के पास न्यूमरस एक्टिविटी है, सबसे पहले हमारे बंदे जाते हैं उनके साइट पर, ये हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है। सेकेंड हमारी डिजाइनिंग एक्टिविटी, थर्ड हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलेशन एक्टिविटी एंड आफ्टर सेल्स एक्टिविटी। तो हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज है, तो हमें देखना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कस्टमर को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम एलिमिनेट भी कर दे तो कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे कंपनी का नाम लीजिएगा, WFS has numerous activity starting with visiting the customer site and ending with after sale service maintenance. So this will provide a unambiguous picture of the complete value chain that will be pursued by the company। तो आप बताइएगा वैल्यू चेन एनालिसिस आपको एक कंप्लीट अनएम्बिगियस पिक्चर देगा जिसके द्वारा आप प्रॉपरली अपनी एक्टिविटीज को वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड बता पाएंगे। सेकेंड बेटा, लो कॉस्ट एडवांटेज, ये आप लिख दीजिए इसके बारे में थ्योरेटिकल, लेकिन चूंकि ये पॉइंट पूरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो एक पैरा में आपको मिलेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और हमारी इंस्टॉलेशन एक्टिविटी हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा हमें कॉस्ट करती है। मतलब कॉम्पिटिटर अगर इस प्रोडक्ट को सपोज 5000 में बना पाता है तो वही प्रोडक्ट हम 5200 में बना पा रहे हैं। तो लो कॉस्ट एडवांटेज हमें नहीं है, लो कॉस्ट एडवांटेज हमारे कॉम्पिटिटर के पास है। तो अब यहां पे लिखेंगे WFS is facing the problem in manufacturing and installation since our cost of manufacturing and installation is higher than our competitor. So it indicates our competitor have a clear-cut low-cost advantage. So value chain analysis help us to identify the solution that will provide us the low-cost advantage also. हमारा competitor अगर वो कर सकता है तो ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी कॉस्ट कम आ रही है, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ये हमें आइडेंटिफाई करके देगा। डिफरेंशियल एडवांटेज के बारे में लिखिए और फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल एडवांटेज हमारे पास क्या है। कस्टमर ने भी बोला है कि ये जो कंपनी है, हमारा जो क्लाइंट है WFS, एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करके देता है हमारे अकॉर्डिंगली जो दूसरे मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं दे पाते। तो डिफरेंशियल एडवांटेज को आपको और रिफाइन करना है, कस्टमर के मन में बैठाना है कि यार माना हमारी प्राइस ज्यादा है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ कस्टमाइज सॉल्यूशन टू योर रिक्वायरमेंट, ये चीजें हैं। एंड कोर कॉम्पिटेंसी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हो। कस्टमर के साइट पे जाना जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल। इसमें से कोर कॉम्पिटेंसी देखिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमारा कॉम्पिटिटर कर ही नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपकी सबसे कोर कॉम्पिटेंसी जो सबसे पहली स्टेप है, आपकी हाईली क्वालिफाइड टीम जाती है आपके कस्टमर के साइट पर और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। दिस इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि बची हुई एक्टिविटीज अगर आपको लगता है वो कॉस्ट बेनिफिशियल है तो आप उसको आउटसोर्स करने का भी डिसीजन लिया जा सकता है।
समझ में आया बेटा? तो थ्योरेटिकल नहीं लिखना है आपको, थ्योरी लिखना है, थ्योरी को फिर आपको क्वेश्चन के वाइज अप्लाई करके लिखना है। कभी भी ये कोशिश मत कीजिएगा कि आईसीआई का जो आंसर है बिल्कुल आप मगअप कीजिए। वही आंसर अगर आईसीआई का दूसरी फैकल्टी दूसरे मेंबर लिखेंगे, लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन मीनिंग वही रहेगा जो आपके स्क्रीन में आपको 4 पॉइंट दिख रहा है। बस इसी को आपको अप्लाई करना सीखना है क्वेश्चन से। उसके लिए 3 चीजें चाहिए, मैं वापस रिपीट कर दूं। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज, आइडिया फ्रॉम द क्वेश्चन, एंड फिर आपका ब्रेन आपको अप्लाई करके उसको एप्लीकेशन पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। इसी प्रकार से अब जो सेकंड पार्ट है ये भी क्वेश्चन स्पेसिफिक है, तो आप बताइए हम जो है हम कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज का भी काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट वैल्यू चेन एनालिसिस कंप्लीटली हमारी सर्विस एक्टिविटी पर नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर बताइए कॉम्प्लिकेटेड, माना हमारे पास हाईली एक्सपर्ट टीम है, लिखा है बेटा ये चीज आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक देना पड़ेगा। माना हमारे पास हाईली एक्सपर्ट टीम है लेकिन चूंकि ये वैल्यू चेन एनालिसिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो भी कहीं ना कहीं आपको फिर इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट इज वैल्यू नेटवर्क, कभी कभी आप आउटसोर्सिंग का डिसीजन ले लेते हो टू सेव द कॉस्ट, जो आपके वैल्यू नेटवर्क के लिए कहीं ना कहीं फिर हार्मफुल है। ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो वैल्यू शॉप मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा बेटा। डायरेक्टली अगर आपने थर्ड पार्ट में वैल्यू शॉप मॉडल लिख दिया यू विल नॉट गेट द मार्क्स। आपको वो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक बताना है कि क्या वैल्यू चेन एनालिसिस के द्वारा हमारे पास कोई एप्रोप्रिएट मॉडल है जो हम अपनी कंपनी में लगा पाएंगे। तो सबसे पहली लाइन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहली लाइन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप वैल्यू शॉप मॉडल यहां पे क्यों अप्लाई करना चाहते हो। आप बताइए कि कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो कस्टमर परसीव करता है, दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज नॉट इंस्टॉलेशन। कंपनी की जो कोर सर्विस है वो है सॉल्यूशन, जो कस्टमर को प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस आइडिया है ना, वो हमें जो सबसे कोर कॉम्पिटेंसी देता है, वो हमारी जो सबसे पहली स्टेप है कि प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम करेंटली फेस्ड बाय आवर कस्टमर। तो मोर और लेस हमारा सर्विस ओरिएंटेड रेवेन्यू ज्यादा है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में तो हमारी कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा आ रही है। सबसे पहले आप ये जस्टिफाई करेंगे कि ये कंपनी को वैल्यू शॉप मॉडल क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है जो भी प्रॉब्लम कंज्यूमर फेस कर रहा है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। फिर ये चारों पॉइंट बस आपको स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, फिर आप ऑथर लिख दीजिए, फिर ये भी बता दीजिएगा आज की तारीख में हम जो वैल्यू चेन लगाना चाहते हैं वो वैल्यू एडिशन पे फोकस करता है, जबकि कस्टमर को वैल्यू एडिशन की प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का हमारा जो मेन बिजनेस आता है वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी, कि कस्टमर जो प्रॉब्लम फेस करता है उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करें। फिर कंसेप्ट बताइए, फिर प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी एक एक दो लाइन में आप उसके क्लासिफिकेशन बता दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी नंबर 6, जिसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आपको वैल्यू शॉप मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। अब मैं बढ़ता हूं टॉपिक नंबर 4 इन अवर पीडीएफ। आई थिंक इट इज सुपीरियर एडवांटेजेस, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे रिलेटेड अपने पास 2 केस स्टडी है। एक केस स्टडी आपको चैप्टर नंबर 1 में ही मिलेगा और दूसरी केस स्टडी फिर आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, जो एक्सक्लूसिवली केस स्टडी के लिए बनाया गया है। सुपीरियर परफॉर्मेंस, नाम से ही क्लियर है बेटा, सुपीरियर परफॉर्मेंस। जब भी सुपीरियर हम बोलते हैं, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, हम सुपीरियर की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हमारा परफॉर्मेंस हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बेटर है तो हम बोलेंगे यस वी हैव प्रोवाइडेड द सुपीरियर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका कस्टमर बेस, एनीथिंग है ना, कुछ और भी बोला जा सकता है, अगर कॉम्पिटिटर के मुकाबले सुपीरियर है देन यू आर द एक्स्ट्रा एज ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जिससे आप शेयर होल्डर को वेल को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपीरियर परफॉर्मेंस अगर आपके पास है या आप उसको अवेल करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है then you will not be able to provide the superior performance to our shareholder, that is maximizing the wealth of our shareholder। तो superior performance देने के लिए हमारे पास competitive advantage होना ही चाहिए। अब competitive advantage basically 2 सोर्स से आता है।
पहला लो कॉस्ट एडवांटेज एंड द सेकेंड वन इज डिफरेंशियल एडवांटेज। अब एक एक के बारे में डील करते हैं बेटा, डिफरेंशियल एडवांटेज और फिर लो कॉस्ट एडवांटेज। अब जो इसका मीनिंग पार्ट है इसको आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसमें जहां भी आपने अपनी लैंग्वेज इंसर्ट किया तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो मीनिंग चेंज हो जाता है, और मीनिंग चेंज हो गया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो ये है, हमें एज अ मैन्युफैक्चरर लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी, हमारे कस्टमर को लगना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का है, हमारे प्रोडक्ट में रिस्क कम है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट को आउट परफॉर्म करता है। किसको लगना चाहिए? हमारे कस्टमर को। तो हम बोलेंगे हमारे पास डिफरेंशियल एडवांटेज है। और डिफरेंशियल एडवांटेज का सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा, मार्केट में जो प्राइस चल रही है आप उसके कंपैरिजन में ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। रिपीट 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 बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइसिंग से रिलेटेड। अगर मेरे क्लाइंट के पास डिफरेंशियल एडवांटेज है तो मेरा क्लाइंट मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल एप्पल ले लीजिए आप, उसका फोन, एप्पल के पास ये एडवांटेज है, लोग मान के चलते हैं, एक ब्रांड इमेज है उसके पास, ब्रांड इमेज कस्टमर मानता है कि नहीं यार एप्पल यूज कर रहे हैं मतलब बहुत बड़ा ब्रांड अपन यूज कर रहे हैं। लोग यह मान के चलते हैं कि उसका फोन जो है वो हैंग नहीं होता है, बहुत प्रॉपरली स्मूथनेस चलता है, लो रिस्क है वहां पे, जब भी हम बेचने जाएंगे तो हमें अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी। ये सब कस्टमर परसीव करता है, आउट परफॉर्म करता है वो अपने परफॉर्मेंस को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे सोनी हो, या कोई भी उस रेंज का मॉडल हो। तो कस्टमर को लगना चाहिए, तब हमारे पास डिफरेंशियल एडवांटेज है। और डिफरेंशियल एडवांटेज को हम एक्सप्लॉइट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सेल प्राइस। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है, अगर हमारे प्रोडक्ट में कस्टमर को लगता है एडवांटेज है तो डेफिनेटली हम एक थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल एडवांटेज है, या कैसे हम अपने आप में डिफरेंशियल एडवांटेज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहला, हमारी क्वालिटी हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले सुपीरियर है, पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, सुपीरियर इनोवेशन, हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स है जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट में अवेलेबल ही नहीं है। जैसा 2-3 साल पहले बेटा एक नया कंसेप्ट मोबाइल कंपनी ने लाया था, वायरलेस चार्जिंग, तो वो एक यूनिक फीचर है, इनोवेशन है। तो ऐसे नए नए प्रोडक्ट आप देखेंगे जब भी इतने बड़े ब्रांड एप्पल या सैमसंग 50,000 प्लस रेंज के मोबाइल फोन लाते हैं, या वन प्लस ले लो, ये कुछ ना कुछ मार्केट में इनको नया देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस लाया तो इनका फिर जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है, दूसरी जगह डाउन होता है। तो इन्हें भी पता है कि भाई हमें कुछ ऐसे फीचर्स देना पड़ेगा जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं दे पा रहा है या उसने अभी तक सोचा भी नहीं है, तो ये हमें डिफरेंशियल एडवांटेज देगा। फिर सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, ये चीज मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो ये बहुत बड़ा आपके लिए डिफरेंशियल एडवांटेज हो सकता है। सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, आप हॉलीडेज के लिए जाते हो, आप अगर ताज में स्टे करते हो या ललित में स्टे करते हो या ऐसे कोई भी बड़े ब्रांड में स्टे करते हो, रेडिसन में, तो एक चीज इनके पास बहुत होती है कि कस्टमर रिस्पॉन्स, जो कर्टसी होती है एम्प्लॉय की, स्पेशली मैं ताज ग्रुप की बात करूंगा, सुपर वाव। जितने भी आप इनके हॉलीडे डेस्टिनेशन देख लीजिए, आप इनकी सर्विस दूसरे होटल से कंपेयर कीजिएगा, मेरे हिसाब से जो मैंने पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस किया हूं, कंपैरिजन ही नहीं है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो उनकी सर्विस होती है वो बिल्कुल वाव होती है, मतलब 100 में से 90% से ज्यादा कस्टमर उनके सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, बल्कि डिलाइटफुल कस्टमर होते हैं जिनको एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिला है। ये चीज हो गया। प्रोडक्ट रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, डिफरेंशियल एडवांटेज। आप अगर हमारे यहां से, हमारी वेबसाइट से परचेज कर रहे हो तो हम न्यूमरस प्रोडक्ट आपको देंगे। जैसे डी मार्ट का एग्जांपल ले लीजिए बेटा, डी मार्ट और बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस में आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत कम रेंज मिलेगी, जबकि आप डी मार्ट में जा रहे हो तो वो एक एक्सक्लूसिव और भी बड़ा उसका ब्रांड है, तो वहां पे आपको न्यूमरस प्रोडक्ट मिलेंगे। यही आप एक छोटी शॉप पे जाइए तो डेफिनेटली वहां पे प्रोडक्ट रेंज कम है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है प्रोडक्ट रेंज का भी, कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली मेरे पास एक डिफरेंशियल एडवांटेज है। फिर कभी कभी पैकेजिंग भी बहुत मैटर करती है, खासकर गिफ्ट आइटम में। खासकर गिफ्ट आइटम में पैकेजिंग मैटर करती है, कि जो मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो बहुत यूनिक होती है, जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं दे पाता है। लेकिन इनिशियली जो 3 एडवांटेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इस प्रकार से आप इसको अचीव कर सकते हो। सुपीरियर क्वालिटी,
सुपीरियर इनोवेशन एंड सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। फिर क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल एडवांटेजेस के साथ, कि पहले ये प्राइसिंग पॉलिसी जो मैंने बोला आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ये तभी पॉसिबल है जब आपका कस्टमर प्राइस इनसेंसिटिव हो। मतलब वो वैल्यू करता है कि यार मुझे चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है तो मुझे एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर। लेकिन डिफरेंशियल एडवांटेज का आपको बेनिफिट मिलना टोटली बंद हो जाएगा अगर आपका कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो गया तो। सेकंड, रिप्लिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था अगर ये एडवांटेज मेरे पास नहीं है तो मैं इसको एक्वायर करने की कोशिश करता हूं, तो मेरी क्वालिटी अगर बेटर है, मैं कुछ नया कर रहा हूं, तो मेरा कॉम्पिटिटर कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उसके प्रोडक्ट में भी ये फीचर आ जाए। रिप्लिका मतलब आपका कॉम्पिटिटर बिल्कुल उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण अगर ये दो चीजें आ गई तो जो डिफरेंशियल एडवांटेज का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट था कि आप मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाते हो, वो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो हम पढ़ रहे हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर परफॉर्मेंस तभी आ पाएगा जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आपके पास दो फोर्स है, पहला डिफरेंशियल एडवांटेज, सेकंड लो कॉस्ट एडवांटेज। सिंपल सा मीनिंग है, अगर मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में मेरी कॉस्ट लो आती है तो मैं बोलूंगा मेरे पास लो कॉस्ट एडवांटेज है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं मेरे पास जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो थोड़ा कंपैरेटिवली चीपर है एज कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर। मेरे पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मेरा वेस्ट कम होता है, वर्कर जल्दी प्रोसेस करता है तो समय कम लगता है, तो मेरी कॉस्ट कम लगती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसबीआई की अगर बात करेंगे, एसबीआई कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि कम प्राइस पर वो अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर उसको डिलीवर कर पाता है। फिर सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट भी एक होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमेशा इनोवेशन पे ध्यान देता है, इंप्रूवमेंट पे ध्यान देता है, तो दूसरों के कंपैरिजन में हमारी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आती है। फिर इसमें बहुत रिस्क है। सबसे पहली रिस्क है कि कंपटीशन। लो कॉस्ट एडवांटेज अगर आपके पास है तो मान के चलेगा आपको लगातार यहां पे प्राइस लो मिलेगी। अगर हम प्राइस कम करते तो हमारा कॉम्पिटिटर कम करता है, कॉम्पिटिटर कम करता है तो हमें अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, हमें अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए हमें भी प्राइस कम करते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज आपको लो कॉस्ट एडवांटेज है वो कंटिन्यूअसली आप उसको मॉनिटर कीजिए, क्योंकि अगर दिन पर दिन आपने अपनी कॉस्ट लो नहीं किया तो आप मार्केट से फिर बहुत जल्दी बाहर हो सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट रिप्लिका वाला यहां पे आ जाएगा, सेम वही पॉइंट जो डिफरेंशियल एडवांटेज में भी था। आपके पास जो एडवांटेज है लो कॉस्ट का, वो आज नहीं तो कल कस्टमर को कॉम्पिटिटर को पता लगेगा, कॉम्पिटिटर उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। और ये भी एक रिस्क है कि कभी कभी कॉस्ट को बचाने के चक्कर में आपका एम्प्लॉय, आपका वर्कफोर्स क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। फिर इस रिस्क को अब हम ओवरकम कैसे करें? चलिए, रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है, कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी आप एक लो कॉस्ट मार्केट में हो तो कभी भी आपको डिजाइनिंग पर इन्वेस्ट नहीं करना, आप हमेशा कॉपी करो। डिजाइनिंग करोगे, आर&डी करोगे तो कई बार फेल्यूर होगा, खर्चा लगेगा, आप वो खर्चा रिकवर नहीं कर पाओगे। वन प्लस का सिंपल सा नियम है बेटा, जब उसने अपनी स्टार्टिंग किया था ना, वो आर&डी उन्हीं पर करता था जो फीचर ऑलरेडी मार्केट में एप्पल, सैमसंग के द्वारा लॉन्च किए गए और बहुत सक्सेसफुल हो गए। फिर उसकी आर&डी अभी होती थी कि मैं इसको कॉपी कैसे करूं, और इतना ही या इससे थोड़ा बेटर मैं कैसे दे दूं। तो कॉपी करने पर वो ज्यादा यकीन रखता था अपने शुरुआती देश में वन प्लस, इसलिए जो एप्पल और सैमसंग 40-50 प्लस में देते थे वही फोन के फीचर विद सेम क्वालिटी लेवल वो 30,000 प्लस में दे देता था वन प्लस इन द इनिशियल डेज। आज की तारीख में देखेंगे तो वो भी एक हाई एंड फोन हो गया, 50,000 प्लस पे उसके फोन लॉन्च होते हैं। सेकंड, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आप अपने वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाइए जिससे आपकी जो लो कॉस्ट है वो लगातार मेंटेन रहे। फिर हाई वॉल्यूम अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला आपको बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगा। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री प्लान कीजिए जहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल हो, जैसे एसईजेड हो गया, ईओयू हो गया, इंडस्ट्रियल हब हो गया। यहाँ पे न सिर्फ आपको लैंड बल्कि मशीनरी पे भी सब्सिडी मिलती है, प्लस जो आपका रनिंग खर्चे है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे जगह अगर आप अपनी फैक्ट्री प्लान आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको लो कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। और फिर लर्निंग कर जो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसके द्वारा जो वर्कर की जो लर्निंग आती है उससे दिन पर दिन आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी।
तो एक नया पॉइंट है इसमें, हाउ टू लोअर द रिस्क, कि अगर लो कॉस्ट एडवांटेज है तो रिस्क तो हमारे पास है, तो इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है बेटा। ठीक है, चलिए अब आइए आप दो केस स्टडी अपने पास इससे रिलेटेड, केस स्टडी नंबर 7 एंड केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी नंबर 7 जो है ये आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर जब एक कंसेप्ट आपको समझाया गया था, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे ये कंसेप्ट खत्म हुआ था जस्ट उसके बाद वाली केस स्टडी है। तो फिर से बेटा लेक्चर आप पॉज कर लीजिए, पहले एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए और फिर लेक्चर रिज्यूम करके फिर आप इसको समझिएगा। तो मैं अब समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, या अज्यूम करके कि आपने लेक्चर पॉज कर दिया है, एक बार पढ़ लिया है, अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पैरा हमें बताता है कि हमारी कंपनी का नाम वायरलेस है, हम मोबाइल फोन्स बनाते हैं, हम जिस मार्केट में वो बहुत डायनामिक है, डायनामिक मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज आते हैं और एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। जो हमारा मार्केट है ये दो पार्ट में बाइफरकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहला कैटेगरी ऑफ कस्टमर हमारे मार्केट में है जो सस्ती चीजें ढूंढता है, बेसिक फीचर्स चाहिए उनको, कुछ भी प्रीमियम फीचर्स नहीं चाहिए, वो कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं। और दूसरा कैटेगरी ऑफ कस्टमर भी हमारे मार्केट में है जो हमेशा सर्च करता है कि मार्केट में नए फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। तो हम जो मार्केट में डायनामिक भी है और दो कैटेगरी ऑफ कस्टमर है। फिर अगर हम अपनी बात करें तो हमें दोनों कस्टमर को हम कैटर कर रहे हैं। मोबाइल ए नाम से जो हमारा प्रोडक्ट है ये कैटर करता है उन कस्टमर को जो एक बेसिक फीचर्स चाहते हैं मोबाइल फोन से, वो कोई एडवांस फीचर नहीं चाहते जो प्राइस सेंसिटिव है। जबकि दूसरे जो हमारे पास कैटेगरी है उनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है मोबाइल जेड, जो लगातार वो कस्टमर चेक करते हैं कि नए फीचर्स मार्केट में जो है हम उसके लिए प्राइस एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन वो नए फीचर्स हमें मिलना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है कि मोबाइल जेड के लिए कई सारा हम रिसर्च करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर को यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर पाए। फिर जब आप थर्ड पैरा पढ़ेंगे तो विद दिस चेंज जो मोबाइल ए की क्वालिटी हमने बढ़ाया है जिससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, ऑनलाइन शॉपिंग भी हमारे फोन मार्केट को बहुत अफेक्ट करता है जो 70% हमारे टर्नओवर को बिलोंग करता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है कि जैसे ही हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस कम करता है, डिस्काउंट देता है, हमें भी कम करना पड़ता है क्योंकि हम जो मार्केट में है वो लो कॉस्ट मार्केट में है। वेरियस रिडक्शन मेजर हमने लिया है, जबकि मोबाइल जेट जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो रिच सेगमेंट ऑफ कस्टमर को बिलोंग करता है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज आपके इंडस्ट्री में आई है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी वाले फीचर्स भी आना चालू हो रहे हैं। अगर वो मार्केट में आ गए तो हमारे जो फीचर्स है आज वो पूरे आउटडेटेड हो जाएंगे, है ना। तो एक बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया बेटा अपने लेवल पर, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दिया हूं। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है इस केस स्टडी में। पहला, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी दैट कंपनीज यूजिंग फॉर मोबाइल ए एंड मोबाइल जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, स्ट्रेटेजी। दो ही हमारे पास स्ट्रेटेजी, एक लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, दूसरा डिफरेंशियल एडवांटेज स्ट्रेटेजी। तो कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये बताइए। और फिर मोबाइल ए जो हमारी करंट स्ट्रेटेजी है मोबाइल ए के लिए, उसको हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं। वापस पढ़ लीजिए बेटा एक और बार रिक्वायरमेंट पार्ट, क्या क्या पूछा है हमसे। मोबाइल ए और मोबाइल जेड के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी आज अडॉप्ट किया है, दोनों स्ट्रेटेजी में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और मोबाइल फोन की ए की जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या रिस्क है। तो देखिए इसका क्या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा आपके पास केस स्टडी नंबर 7 का। रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 आपको फोकस करता है, आप आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रेटेजी पे। सेकंड, आपको रिस्क बताना है, और थर्ड, करंट स्ट्रेटेजी को सस्टेन करने के लिए कुछ सजेशन देना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। जब भी आप स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करेंगे इस क्वेश्चन में, मोबाइल फोन ए के लिए आपको अलग करना है, मोबाइल फोन बी के लिए आपको अलग करना है। पहली लाइन में आप आइडेंटिफाई कर देंगे, आप वहां पे नाम बता देंगे कि हमने मोबाइल फोन ए के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है, मोबाइल फोन बी के लिए हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है, एंड एट द सेम टाइम आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसके कारण आप ये स्ट्रेटेजी बोल रहे हो। जैसा मोबाइल फोन ए में जो हमारा टारगेट कस्टमर था वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक फीचर्स चाहता है और जो कॉस्ट कॉन्शियस है, तो डेफिनेटली यहां पे हम लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में प्राइस कम होती है हमें भी फॉलो करना पड़ता है प्राइस कम होने में। तो जो मार्केट मोबाइल ए है
वी आर फॉलोइंग द लो कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और बी में जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं डिफरेंशियल एडवांटेज स्ट्रेटेजी। हमारे अब रीजन, हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स है जो कस्टमर परसीव करता है कि ये इनोवेटिव फीचर है। यहाँ पे क्वालिटी से ज्यादा बेटा आपको इनोवेशन पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने इस पे बहुत टारगेट किया है। जब जब उन्होंने मोबाइल फोन बी के बारे में बात किया, तो हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इनोवेटिव फीचर्स है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो ये फीचर्स हम हमें एक्स्ट्रा एज देते हैं, जिसके कारण हम मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ी सी प्रीमियम प्राइसिंग कर पाते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट पार्ट में आपको अपना आंसर मोबाइल फोन ए के लिए अलग बाइफरकेट करना है, मोबाइल फोन बी के लिए अलग बाइफरकेट करना है। एक लाइन में आपको आइडेंटिफाई कर देना है कौन सी स्ट्रेटेजी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है आपको मैक्सिमम 2-3 लाइन में। तो करीबन देखिए बेटा, पहला पार्ट जो रिक्वायरमेंट पार्ट है, कंफर्टेबली आप 8 to 9 लाइंस में इसको कंप्लीट कर देंगे। सेकेंड पार्ट था क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है हर स्ट्रेटेजी में। मोबाइल ए में हमने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो किया है, और मोबाइल बी में हमने डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी फॉलो किया है। तो लो कॉस्ट में सबसे पहला है कंपटीशन, लगातार राइवलरी हमेशा इसमें बनी रहती है। हम प्राइस कम करते हैं, कॉम्पिटिटर प्राइस कम कर देता है। कॉम्पिटिटर अगर प्राइस कम करता है तो हमें मजबूरी में प्राइस कम करना पड़ता है ताकि हम अपने मार्केट शेयर को सस्टेन कर पाए। ये सबसे बड़ी रिस्क है लो कॉस्ट में, क्योंकि यहां पे कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है। मोबाइल फोन वो परचेज कर रहा है 4 to 5,000 का, 200 रुपी के डिफरेंस में वो बिल्कुल इजीली दूसरे मोबाइल फोन में शिफ्ट हो जाता है, अगर आपका ब्रांड उस प्राइस पर उसको डिलीवर नहीं कर रहा है तो। सेकेंड, जो हमारे पास एडवांटेज है लो कॉस्ट का, आज नहीं तो कल कॉम्पिटिटर क्या करेगा, उस एडवांटेज को भी वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। थर्ड, हमेशा ये रिस्क रहेगी लो कॉस्ट एडवांटेज में कि कहीं आप लो कॉस्ट को कंटिन्यू सस्टेन करने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करो। ठीक है बेटा, जबकि अगर आप रिस्क देखेंगे मोबाइल फोन बी में, जो डिफरेंशियल एडवांटेज है, सबसे बड़े रिस्क है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। अभी तो प्राइस इनसेंसिटिव है, मतलब मार्केट के कंपैरिजन में वो ज्यादा प्राइस आपको दे रहा है क्योंकि आप कुछ क्वालिटी, टेक्नोलॉजी या कस्टमर रिस्पांस आपका दूसरे के मुकाबले सुपीरियर है, ऐसा कस्टमर को लगता है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। लेकिन अगर आपके वही कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो गए तो फिर डिफरेंशियल एडवांटेज का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब फिर मार्केट में जो प्राइस चल रही है वही प्राइस आपको देना पड़ेगा। सेकेंड रिस्क है जो आपने क्वालिटी, जो आपके फीचर, जो आपका कस्टमर रिस्पॉन्सिव, अगर एक कॉपी कर ले आपका कॉम्पिटिटर तो फिर वो डिफरेंशियल कहां हुआ। आप भी वह दे रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी वह दे रहा है, तो फिर वही चीज आप फिर मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाओगे। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट में हमें रिस्क लिखना था, तो दोनों जगह देखेंगे बेटा मिलाकर टोटल 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट्स को आपको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। इनफ मटेरियल हो जाएगा आपके पास 12 to 15 लाइंस का फॉर आंसरिंग रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2। रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कि आज जो करंट स्ट्रेटेजी है मोबाइल ए से रिलेटेड, मतलब लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, इसको सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जस्ट अभी अभी अपन ने डिस्कस भी किया बेटा, पूरा जो आपके पीडीएफ में अवेलेबल है, जस्ट कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम डिजाइन ना बना के हम कॉपी करेंगे डिजाइन, हम वॉल्यूम ऑफ स्केल पर फोकस करें ताकि हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिले, फिर लर्निंग का इम्पैक्ट, फिर हम ऐसे जगह अपने फैक्ट्री को लेआउट को करें जहां पर हमें गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती हो या लो कॉस्ट एडवांटेज हो। तो फिर डेफिनेटली हम अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर वो रिस्क भी है तो हम उसको मिटिगेट कर पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन बेटा केस स्टडी नंबर 7 रिलेटेड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे अच्छी केस स्टडी इसी टॉपिक पे आपको मिलेगी, केस स्टडी नंबर 8, जो आपके चैप्टर नंबर 13, जो स्टडी मटेरियल का एक्सक्लूसिव वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम नंबर 3, वहां पे मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि जब ये क्वेश्चन अगर पहली बार एग्जामिनेशन में आता केस स्टडी नंबर 8, तो केस स्टडी नंबर 8 जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है लेंथ। इतना लेंथी केस स्टडी है कि मान के चलिए यहां पे बच्चा पहले ही 50% गिव अप कर देता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस केस स्टडी का। लेकिन मैं आपको आज एक और अश्योरेंस दे रहा हूं बेटा, लेंथी केस स्टडी है, कभी भी उसे टफ मत मानिएगा। आई रिपीट, लेंथी केस स्टडी है, कभी भी आप उसे टफ मत मानिएगा। इन टाइप की केस स्टडी में रीडिंग में ज्यादा समय लगता है, पेशेंस आपका ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। वंस यू गो
through this case study 2 or 3 times before making the structure, before answering the question, definitely this will be a very easy task. बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी लेंदी केस स्टडी है मिलेगी आपको आपके स्टडी मटेरियल में, आपको आरटीपी में, एमटीपी में, जो प्रिंटेड पेजेस में अगर बात करें तो प्रिंटेड पेजेस में 4 to 5, और एग्जामिनेशन के अगर प्रिंटेड पेजेस में बात करें तो 7 to 8 पेजेस तक भी वो केस स्टडी जाती है। तो इस टाइप की केस स्टडी देख के जो मेरा एक्सपीरियंस है सीए फाइनल का, 50% स्टूडेंट यहाँ पे गिव अप कर देता है। वो मान के चलता है इतना तो अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे, और अगर आप केस स्टडी नहीं पढ़ पाएंगे पूरा एक एक वर्ड तो आप उसको आंसर भी नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ध्यान रखिए, इन टाइप की केस स्टडी में आपको समय लगता है पढ़ने में, लेकिन मैंने आपको बताया था 3 चीजें होती है, एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज, सेकंड क्वेश्चन से डिटेल, और थर्ड एप्लीकेशन पार्ट। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, इसमें जो थर्ड पार्ट है जो सबसे टफ माना जाता है, एप्लीकेशन पार्ट, उसका रोल यहाँ पे बहुत कम होता है। क्वेश्चन में ही आपको सभी डिटेल दे दिया होता है, सिर्फ 10 to 20% यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट होता है। बाकी अधिकतर चीजें आपको आपके स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस क्वेश्चन से ही उठाना होता है, यही आपके 80-90% कवर करते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे कंपेरेटिवली कम रहता है, 10 to 20%। तो देखिए, कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन देता है, आपको यहाँ पे सिंपल कर दिया एप्लीकेशन पार्ट, तो फिर आपसे टाइम लेता है कि आपको इस केस स्टडी को, अगर नॉर्मली कोई केस स्टडी आप सेकंड रीडिंग में कंफर्टेबल हो जाते हो, तो इस टाइप की केस स्टडी में आपको पेशेंस रख के करीबन मेरे हिसाब से आपको पहली रीडिंग 3 से 5 मिनट में, सेकंड रीडिंग फिर अगेन 3 से 5 मिनट में, और जब आप थर्ड रीडिंग लगाएंगे ना तो फिर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। योर नो चॉइस बेटा, आप केस स्टडी को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका मिनिमम 20 to 30 मार्क्स बिलोंग करेगा, और ये हमेशा किंग मेकर रहेगा। तो हर केस स्टडी की अपनी अपनी टेक्निक है। जो छोटी केस स्टडी होती है वो एप्लीकेशन ज्यादा डिमांड करती है, जो लेंदी केस स्टडी होती है वो आपका टाइम और पेशेंस डिमांड करता है कि कितना पेशेंटली आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाते हो, कितना रिटेन कर पाते हो। ठीक है, तो एक काम करता हूं, आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, करीबन 2-1 पेज का पूरा है ये मैटर, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे 5 मिनट देना चाहूंगा बेटा ना, नहीं तो जनरली मैं बोलता हूं आप लेक्चर पॉज कर लीजिए फिर पढ़िए, नहीं, ये केस स्टडी में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, अनलेस एंड अनटिल ये केस स्टडी आपने अभी नहीं पढ़ा, इसके सॉल्यूशन सुनते समय तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं 5 मिनट देता हूं, आप 5 मिनट में एक बार इसकी न्यूज़पेपर रीडिंग लगाइए, एक्सपेक्ट कीजिएगा 15-20% आपको एक क्वेश्चन की कुछ कुछ डिटेल दिमाग में बैठी है, नॉट मोर देन दैट। फिर मैं इसको फॉर्मली स्टार्ट करता हूं बेटा, फिर मैं एक एक पैरा पढ़ता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं किस किस पैरा में क्या चीज है, फिर रिक्वायरमेंट पार्ट के अकॉर्डिंगली अपन इसको आंसर करेंगे। 5 मिनट आई एम गिविंग टू यू।
चलिए बेटा, आपने पढ़ा। अब आते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं एक एक पैरा क्या है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये दो कंसेप्ट का मिक्स है बेटा। इसमें चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट पार्ट 1 और 2 मिलेगा, और चैप्टर नंबर 11 बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट पार्ट 3rd और 4th मिलेगा। सो राइट नाउ इन चैप्टर नंबर 1 वी आर डीलिंग ओनली विद टू रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 एंड रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2। रिक्वायरमेंट पार्ट 3rd और 4th अपन डील करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। वहां पे जो कंसेप्ट लगता है फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे क्लाइंट का नाम है यहाँ पे विंग्स इंटरनेशनल, एक मेजर प्लेयर है एयरलाइन इंडस्ट्री का इंडिया में। कई सालों से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर पे बल्कि इंटरनेशनल लाइन पे भी। हम पिछले 30 सालों से डील करते हैं इस एयरलाइंस में, और हम बिजनेस क्लास और जो प्रीमियम क्लास होता है सेगमेंट ट्रेवल, वो हमारे मेन कस्टमर कहलाते हैं। मतलब जो एयरलाइन ट्रेवल में 3 सेगमेंट ले लो बेटा आप, इकोनॉमी, बिजनेस सेगमेंट और प्रीमियम, मतलब जो फर्स्ट क्लास सीट वगैरह होते हैं वो बात कर रहा है। तो हम जो टारगेट करते थे वो बिजनेस और प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते थे, और हमारे द्वारा जो सर्विस दी जाती थी वो फुल सर्विस ऑन बोर्ड दी जाती थी। मतलब जो कस्टमर हमें पैसे देता है उसमें सब चीजें इंक्लूसिव होती थी। फूड हो गया, आप, इन्होंने एक टैगलाइन भी दिया था, ग्रैब योर बैग दे फ्लाई फ्री। मतलब आप अपने लगेज की चिंता मत कीजिए, आप तो उसको लाइए, हम उसका आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। एंटरटेनमेंट पूरा स्क्रीन होती थी आपके सीट के फ्रंट में। मतलब फुल ऑन बोर्ड सर्विस आज तक हम दे पा रहे थे। लेकिन फिर सेकेंड पैरा में हमें बताता है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आए ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। बहुत सारी नई एयरलाइंस आई है जो हमारे कस्टमर का एक मेजर पार्ट अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑफर करते हैं एट अ वेरी लो प्राइस। जबकि आज तक हम ऑफर कर रहे थे बिजनेस क्लास को और प्रीमियम सेगमेंट को, उनसे जो हम पेमेंट लेते थे वो फुल सर्विस बोर्ड का पैसा लेते थे। टिकट प्राइस हो गया, नंबर ऑफ बैगेजेस भी वहां पे ज्यादा होते थे फ्री अलाउंसेस के रूप में, और फूड दिया जाता था, और बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस आपको प्रोवाइड होती थी। लेकिन अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री में इनका कहना है बहुत सारे न्यू प्लेयर आए हैं जिन्होंने एक प्राइस वार क्रिएट कर दिया है, बहुत लो फेयर पर वो कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली देखोगे तो बेटा हुआ भी है कि आप इंदौर से अगर मुंबई जा रहे हो तो इवन 1000 रुपए के आसपास कभी कभी सेल चलता है, इसमें आपको टिकट मिल जाती है। साल में 1-2 बार आपको ये मौके जरूर मिलते हैं कि इवन 1500 के विद इन आपको टिकट प्राइस अवेलेबल हो जाती है। जबकि सेकंड एसी का अगर आप रेलवे का फेयर देखो तो उससे ज्यादा ही है। तो जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने भी सोचा कि अब मैं एक काम करते हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर इन्होंने अपने डोमेस्टिक रूट पर अब यही चीजें फॉलो करना चालू किया। ये भी लो कॉस्ट प्राइसिंग पे चले गए। अब इनके पास जो प्राइसिंग थी इसको इन्होंने बोला नो फ्रिल्स एयरलाइंस। मतलब अब जो आपने हमें पेमेंट दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सीट की कॉस्ट कवर्ड है, प्लस 1 चेक इन बैगेज हम आपको अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो पिछले 5 सालों में जो इनका बेसिक टारगेट था कि हमें प्रीमियम और बिजनेस सेगमेंट को टैकल करना है, अब ये चेंज हो चुके हैं पिछले 5 सालों से। अब ये कॉम्पिटिटिव मोड पे चले गए ताकि ये कंपटीशन फेस कर पाए जो नई नई एयरलाइंस अब ऑफर कर रही है कंपटीशन। तो अब ये फुल बोर्ड, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको लिखना पड़ेगा ना, फुल सर्विस ऑन बोर्ड से अब ये नो फ्री एयरलाइंस में जा चुके हैं। कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस अगर पैसेंजर को चाहिए तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक ध्यान दीजिए, भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने एक काम किया, लो कॉस्ट में जा रहे हैं तो इन्होंने एक काम किया कि लास्ट टाइम पर जो सीट हमारी फुल नहीं हुई, लास्ट टाइम पर जैसे मान के चलिए फ्लाइट का डिपार्चर टाइम हो चुका है, लगभग 2 से 3 आवर्स बाकी है, तो इसको बोला जाएगा कि अगर ये सीट आपने और समय पर फुल नहीं किया तो ये पेरिशेबल है, मतलब फिर उस सीट का आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या सोचा, हम लास्ट में 2-3 आवर्स बिफोर अगर हमारे पास कोई फ्लाइट में सीट वैकेंट है तो हम उसको बहुत लो प्राइस पे देंगे ताकि जो भी वो पेमेंट हमें मिल रहा है वो हमारे प्रॉफिट को बेनिफिट करेगा। इसके अलावा इन्होंने एक और किया, जो भी इनके टिकट काउंटर थे उसको टोटली बंद कर दिया। अब इन्होंने फोकस किया कॉस्ट बचाने के लिए कि अब हम ऑनलाइन टिकट्स ही इशू करेंगे। जैसे आप इंडिगो देखेंगे तो बहुत कम सिटीज में बेटा इंडिगो के आपके ऑफिस मिलेंगे जहां पर आप टिकट्स बुक कर सकते हो, है ना।
जनरली वो ऑनलाइन ही पूरा प्रेफर करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट बच पाए। ये सेकेंड पैरा। फिर थर्ड पैरा इसी को कंटिन्यूएशन में बता रहा है कि हमने अपने जो टेक्टिकल स्टाफ है, स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, टेक्टिकल लेवल को हमने पूरा ऑथोरिटी दिया कि आप हमारी बिना परमिशन के प्राइस कम ज्यादा कर सकते हो बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है इनको, जब से इन्होंने ये लो प्राइस कंपटीशन में गए, फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, प्लस चूंकि अब एयरलाइंस बहुत सारी है तो जो कंजेशन हो रहा है एयरपोर्ट पे उसके कारण वहां पे चार्जेस बढ़ रहे हैं। बाद में इनको पता लगता है 5 सालों बाद कि हमने जो ऑफर किया था हम उसमें सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस 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 लास्ट मिनट डील में हमने जो सोचा था कि यार ये खाली रहेगी तो एक काम करते हैं इसको सस्ते पे दे देते हैं, उससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके रिसर्च के मुताबिक वो बंदे ऐसे थे कि वो नीडी बंदे थे, मतलब जो प्राइस आप बोलते वो आपको प्राइस देते क्योंकि उन्हें तो फ्लाई करना है, उन्हें दूसरे डेस्टिनेशन पे अर्जेंटली पहुंचना। और होता भी ऐसा है बेटा, अगर मान के चलिए कोई अर्जेंसी आती है तो फिर अपन ये नहीं देखते कौन सी एयरलाइंस क्या दे रही है, जो बिल्कुल विद इन 1 आवर 2 आवर फ्लाइट अपन वो कैचअप करते हैं, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी ज्यादा हो, अर्जेंसी में बंदा पेमेंट देता है। आपके साथ भी कभी हुआ होगा, वही फैक्टर जो आप 2000 से 3000 में फ्लाई करते थे, अगर अर्जेंसी में कभी आपने तुरंत 1 to 2 आवर या 3 आवर बिफोर कोई फ्लाइट बुक किया है तो उसके लिए आपने 10,000 प्लस भी दिया होगा। अब इनको ये समझ में आता है जिसके कारण हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या क्या पोजीशन हो गई बेटा? अभी तक हमारी जो कंपनी है वो 30 इयर्स पुरानी है, 3 डेकेड से हम काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 डेकेड से हम फोकस करते थे सिर्फ 2 सेगमेंट पर, बिजनेस क्लास और प्रीमियम सेगमेंट, जहां पर हम फुल बोर्ड सर्विस ऑफर करते थे, ऑल इंक्लूसिव होता था, कस्टमर को कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता था। लेकिन अब इंडियन सिनेरियो में बहुत सारी नई एयरलाइंस एंटर हुई है जिसके कारण कंपटीशन बहुत इमेंस हो गया, तो हमें लगा डोमेस्टिक सेगमेंट में हम एक काम करते हैं, हम भी कॉम्पिटेटिव प्राइस में जाते हैं। हमने भी अपनी प्राइस कम कर दिया, हमने अपनी प्राइस कम करा। अब हम सिर्फ ऑफर करते हैं नो फ्रिल्स एयरलाइन, मतलब आपकी जो प्राइस है उस पर सिर्फ आपको सीट मिलेगी और एक चेक इन बैगेज मिलेगा, नथिंग मोर देन दैट। आपको इसके अलावा और कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कुछ लो कॉस्ट मेजर्स भी लिया, हमने ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दिया, हमने जो लास्ट मिनट पे जो सीट वैकेंट होती थी उसको बहुत कम दाम पे बेचना चालू किया। हमने अपने मार्केटिंग स्टाफ को पूरा परमिशन दिया कि आप हमारी बिना परमिशन के, टॉप मैनेजमेंट के, आप प्राइस कम ज्यादा कर सकते हो बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स मूव। लेकिन हमें दिक्कत आई, फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ती गई इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन के कारण आपकी कंजेशन चार्जेस जो एयरपोर्ट के थे वो बढ़ते चले गए, एंड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर जब हमने पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था, हमें पता लगा हम सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस जो हमारा वैकेंट जो सीट के बारे में व्यू था, बाद में पता लगता है वो सीट हमने मान के चलिए 1000 में बेच दिया, जबकि उस सीट के लिए बंदा 10,000 भी दे सकता था, क्योंकि वो नीडी पर्सन होते हैं जो कोई भी हालत में उनको जो फ्लाइट समय पर मिल जाए उनको तो फ्लाई करना ही करना था। फिर एक नेक्स्ट पैरा आपको ये बोलता है, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, कि जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट ट्रेवलर था अब वो कंफ्यूज हो गया। अब उसको लग रहा है कि यार मैं इतना इसको पेमेंट करता था, एक ब्रांड इमेज थी, ये वाली कंपनी तो आज की तारीख में आप देखेंगे तो इसके पास तो लो कॉस्ट कैरियर वाले कस्टमर भी आ रहे हैं। आप देखिएगा बेटा, जितने बड़े ब्रांड है, मर्सिडीज ले लो आप, BMW ले लो, ऑडी ले लो, ये नहीं चाहते क्या ये जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट आप देखेंगे तो 5 लाख टू 10 लाख वाली जो कार है ना, वो मोर देन 60-70% मार्केट बिलोंग करती है। तो ऑडी BMW भी ला सकते हैं बेटा, क्यों नहीं ला सकते? बहुत इजीली इनके लिए। रोल्स रॉयल ले लो आप, उसके प्रोडक्ट कम आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? उनका एक क्लियर कट रीजन है, अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट भी बनाने लगे जो मास कंज्यूमर को डील करता है, तो हमारा जो प्रीमियम कस्टमर है, जो हमने करोड़ रुपए देता है एक एक कार के लिए, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि प्रीमियम ब्रांड है या नॉर्मल ब्रांड है। मारुति कंपनी देखिएगा, मारुति कंपनी ने कई बार कोशिश किया था अपना एक अलग ब्रांड बनाने के लिए, 15-20 लाख तक की कार बनाने में कई बार उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका कस्टमर कभी मानता ही नहीं था कि यार मारुति जैसी कार कभी एकदम प्रीमियम सेगमेंट में आ सकती है। दूसरा नाम लेना चाहूंगा मैं स्कोडा का। स्कोडा की जो कार है 30-35 लाख तक आती है। स्कोडा ने कई बार ट्राई किया कि 40-45 लाख वाले मार्केट में जाए, सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि कंज्यूमर मानता ही नहीं कि स्कोडा ब्रांड इतना है।
लेकिन वही चीज अगर ऑडी ये ले ले और ये अगर 10 लाख के विद इन कोई कार लॉन्च कर ले, तो इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो इनको करोड़ रुपए भी देता है एक एक कार के लिए, वो जरूर कंफ्यूज हो जाएगा क्या आज भी ये ब्रांड प्रीमियम ब्रांड है। ऐसा ही इस कंपनी के साथ हुआ, इस पैरा में आपको बताया। अब कंपनी ने फाइनली सोचा कि अब हम डिसकंटिन्यू कर देंगे लो कॉस्ट एयरलाइन और वापस से जो हमारे पिछले 30 सालों से जो हम प्राइसिंग ऑफर कर रहे थे फुल सर्विस रेट, वो हम चालू कर देंगे। अब एकदम से यहां पे यूटर्न लेता है। अब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि छोटे छोटे सिटीज को कनेक्ट करना चाहती है थ्रू एयर। तो हमारी कंपनी बिल्कुल ये फॉलो करना चाहती है और हमारी कंपनी चाहती है कि हम ये सर्विस बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदे को मान के चलिए इंदौर से मुझे जाना है दुबई, है ना, अभी हाल फिलहाल से अगर आप देखेंगे 1 और 2 ईयर से, तो यहां से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट एमिरेट्स के लिए चालू हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे इंदौर से मान के चलिए यूएस जाना है, तो मेरे पास कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है डायरेक्टली इंदौर से यूएस, मुझे मेट्रो सिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। तो ये पैरा आपको बताता है आज तक क्या होता था। अगर कोई इंदौरियन को मान के चलिए यूएस जाना है, तो पहले वो इंदौर से मुंबई पहुंचता था बाय ट्रेन या बाय कार, फिर वहां से वो फ्लाइट लेता था या वो कोई दूसरी एयरलाइन से लेता था, तो उसमें समय बहुत वेस्ट होता था, 6 to 7 आवर का वेटिंग टाइम पीरियड रहता था कि वाली फ्लाइट आपकी लैंड हुई है, वाली फ्लाइट बहुत दूसरे जगह टेक ऑफ करेगी, एयरपोर्ट बदल जाते थे, ये प्रॉब्लम आती थी। तो अब हमारा फोकस क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ, हम ये छोटी छोटी सिटीज को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के साथ भी जोड़ेंगे। हम छोटी सिटीज से जो मेजर हब है हमारे, जहां से हम इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं, वहां से हम छोटे एयरक्राफ्ट के थ्रू इनको फ्लाई कराएंगे, फिर वहीं से इनको कोई बैगेज कलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम रहेगा वो इनके बैगेज को इंटरनेशनल कर लेगा। इसके अलावा हम हॉलिडे पैकेज डील कर रहे हैं कि ये बंदों को जो भी कैब सर्विस की जरूरत है, होटल की जरूरत है, वीजा रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारी कंपनी एक टोटल पैकेज दे पाए, जो और इस पैरा में आपको मिलेगा ये कॉम्पिटिटर ये फीचर हमारे नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं वो कनेक्टिविटी वो दे पाए। ठीक है, तो ये पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एकदम। अब हमारा चेंज हो गया, विंस टू फ्लाई एनीवेयर एनी टाइम, जहां आपको जाना है जब जाना है, हमारे पास आपके लिए कनेक्टिविटी है। आप हमारे डिफरेंट चैनल को यूज कीजिए, आपको ना सिर्फ हॉलिडे पैकेज मिलेगा, बल्कि आपको हम छोटी सिटी से मेन हब में कनेक्ट करते हो, हम आपको इंटरनेशनली भी फ्लाई कराएंगे। अब यहां पे जो रिक्वायरमेंट पार्ट है 1 और 2, ये हमें बताता है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि आज की तारीख में कौन सी स्ट्रेटेजी कंपनी ने अडॉप्ट किया था नो फ्रिल्स एयरलाइन, जहां पे सिर्फ एक सीट और आपको एक ही बैगेज मिलता था चेकिंग के लिए। फिर आपको बताना आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट, ये जो पूरा आपका प्रपोज प्रोजेक्ट है इसके लिए आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया। तो ये बेटा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इस केस स्टडी का, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, क्योंकि इसमें पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पेशेंटली 2 से 3 रीडिंग लगाते हो। वो 2 से 3 रीडिंग लगेगी, डेफिनेटली क्वेश्चन फिर आपको कंफर्टेबल लगेगा। तो टोटल 4 रिक्वायरमेंट पार्ट है जैसा आप देख रहे हो, लेकिन रिक्वायरमेंट पार्ट 3rd और 4th जो है वो डील करता है किसको, चैप्टर नंबर 11 को, वो अपन यहाँ पे अभी फिलहाल डील नहीं कर रहे, हमें 2 चीजों को डील कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी, सबसे पहले उसने जो पहली रिक्वायरमेंट पार्ट है, हमें बताना पड़ेगा आज की हमारी करंट स्ट्रेटेजी क्या थी, फुल बोर्ड मील, मतलब हम उस प्राइस में कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते थे, जबकि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं नो फ्रिल्स एयरलाइंस में, मतलब लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में हम शिफ्ट हो रहे हैं। फिर क्या क्या इनिशिएटिव लिया है हमने लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी के लिए, आपको यह बताना पड़ेगा। अब हम कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर नहीं करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सर्विस कंज्यूमर को चाहिए उसके लिए उसको पेमेंट देना है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, हमने यहां पर ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दिया है। अब जो हमारे कियोस्क होते थे या सेंटर होते थे जहां से टिकट बुक होती थी, अब हमने वो चीजें खत्म कर दिया है। ये हमने इनिशिएटिव लिया लो कॉस्ट एडवांटेज के। एक और इनिशिएटिव हमने लिया है कि लास्ट मिनट पे जो हमारी सीट वैकेंट रहती थी उसको हमने बहुत कम प्राइस पर ऑफर करना चालू किया, ताकि वो भी हमारे प्रॉफिट को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ये हमारी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी थी। फिर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन स्पेसिफिक, क्या ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी हमारी सक्सेसफुल हो पाई या फेल्यूर हो पाई। क्वेश्चन ने खुद बोला है ये हमारी फेल्यूर रही। फेल्यूर होने का पहला रीजन था लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते गए, दूसरे खर्चे भी बढ़ते गए। पहला पॉइंट ये लिखिए आप, क्वेश्चन ने दिया है। सेकेंड पॉइंट भी क्वेश्चन ने दिया है
कि हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर है वो कंफ्यूज हो गया कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज अभी भी इंटैक्ट है क्या। तीसरा लिखिए, जो आपने वैकेंट सीट लास्ट मिनट के लिए करा था उसमें आपको बाद में पता लगता है कि जितना आपने बेनिफिट सोचा था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि लास्ट मिनट वाले जो कस्टमर होते हैं वो कोई भी प्राइस पर ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा कंप्लीट फेल्यूर रहा है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज नो फ्रिल एयरलाइन। बताया था बेटा मैंने आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट जनरली कम होता है, अधिकतर चीजें आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि ये चीजें आपको लिखना है। तो जब आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे आप चेक कीजिएगा आपका स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का प्लस क्वेश्चन की डिटेल मिलके ही पूरा सॉल्यूशन बन रहा है। यहां पर आपका एप्लीकेशन पार्ट, आपका इमेजिनेशन पार्ट बहुत कम होता है। तो कभी मत घबराइएगा जब भी लेंदी केस स्टडी आए, मान के चलिए समय जरूर इसमें 5-7 मिनट आपको ज्यादा लगेगा ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा रीडिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपका समय बचेगा। जो आप सोचते थे चीजें उसमें जो आपको टाइम लगता था वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है प्रपोज्ड स्ट्रेटेजी क्या है। हमारी जो प्रपोज्ड स्ट्रेटेजी है वो है डिफरेंशियल एडवांटेज, क्योंकि अब हम अपने कस्टमर को कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर रहे हैं जो हमारा कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं कर सकता। अगर आप इंडिया में देखोगे तो बेटा एयर इंडिया के अलावा अगर आप देख रहे हो तो आपके पास स्पाइस जेट है, आपके पास गो एयर है, आपके पास इंडिगो है। गो एयर और स्पाइस जेट जो है ना, इनका जो नेटवर्क है और जो इंडिगो का नेटवर्क है इसमें बहुत अंतर है। इंडिगो का नेटवर्क स्मॉल सिटीज को भी कनेक्ट करता है, मेट्रोस को, और उसको फिर इंटरनेशनली फ्लाई भी कराता है। जबकि स्पाइस जेट और गो एयर है ये हर मेजर सिटीज में ही अवेलेबल है, ये स्मॉल सिटीज में अवेलेबल नहीं है। तो यही एयरलाइंस का सबसे बड़ा एडवांटेज था, हमारा बहुत वाइड नेटवर्क है, हम स्मॉल टाउन को भी कनेक्ट कर रहे हैं मेन हब से, और फिर वही हमारी ही सर्विस उस बंदे को इंटरनेशनली फ्लाई कराएगी। तो हमने डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया यहाँ पे कि जो हमारा कंज्यूमर हमारे पास हम उसको डिलीवर कर पाएंगे, हम उसको जो प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट रेंज, मैंने आपको बताया था ये चीज पढ़ाते समय, प्रोडक्ट रेंज, कई सारे प्रोडक्ट की सर्विस हम उसको दे रहे हैं। तो हम डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर पूरा जो लास्ट पैरा है ना बेटा, वो पूरा उसको वहां पे छाप दीजिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हम उसको स्मॉल सिटी से फ्लाई करा रहे हैं मेन हब में, मेन हब से इंटरनेशनली फ्लाई करा रहे हैं। सेकंड, हम उसको होटल सर्विस, हॉलिडे पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो दूसरा कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए। और फाइनली कंक्लूड कर दीजिए कि अब कंपनी को इस बिजनेस पर सस्टेन रहना पड़ेगा, क्योंकि यही वो स्ट्रेटेजी थी जो उसको पिछले 3 डेकेड से प्रॉफिटेबल बना रही है। कंपटीशन आ रहा है लेकिन आपको अपने लिए एक जगह अलग बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा विस्तारा एयरलाइंस का। कभी भी बेटा जब भी सेल लगती है आप देखिएगा, एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर सब प्राइस कम करते हैं, लेकिन विस्तारा एयरलाइन उसने अपना एक प्रीमियम इकोनॉमी सेगमेंट बनाया। मैंने इकोनॉमी नहीं बोला, मैंने बोला प्रीमियम इकोनॉमी सेगमेंट बनाया। वो सर्विस पर ज्यादा बिलीव कर रहा है, न कि वो प्राइस वॉर पर। मैंने अभी तक नहीं सुना कि कभी भी विस्तारा एयरलाइन ने 1500 या 2000 में कभी भी ऑफर किया हो टिकट, मेरे नॉलेज में नहीं है। जबकि एयर इंडिया, इंडिगो, इन्होंने 1500 इवन 1000 पर भी अपने टिकट ऑफर करते इन अ ईयर 2 या 3 टाइम, ताकि इनको वॉल्यूम मिले, दूसरा मार्केट शेयर भी इनको कैप्चर कर पाए। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेंदी बहुत है लेकिन चीजें आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अपन लास्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिलेटेड अ वेरी इजी टॉपिक, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। द लास्ट टॉपिक इज पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल क्या क्या है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। अब आइए बेटा पेज नंबर 7, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। वेरी सिंपल टॉपिक है ये, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कंसेप्ट लगेगा कहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जनरली जब भी आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में आपको इसी नाम से पूछे पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। तो इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पहचानेंगे कैसे। बहुत सिंपल सा तरीका है, जब भी मेरा क्लाइंट कोई नई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, जब भी मेरा क्लाइंट कोई नई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो जब वो चेक करेगा कि क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए अट्रैक्टिव है या नहीं, तो किन किन आधार पर वो ये चेक करेगा कि मेरे लिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, उसी को बोला गया पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। तो माइकल पोर्टर के हिसाब से जब भी आप कोई नई इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो आप इन 5 सोर्सेस पर चेक कीजिए कि क्या इंडस्ट्री आपके लिए अट्रैक्टिव है, क्या आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
तो लिखना चाहते तो लिख सकते बेटा, पोर्टर 5/4 मॉडल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप केस स्टडी में। अगर केस स्टडी आपको पूछ रहा है कि आपका क्लाइंट इस नई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, क्या ये नई इंडस्ट्री उसके लिए अट्रैक्टिव है या नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए, तो आपके कंप्लीट सिलेबस में एक ही टॉपिक अवेलेबल है, एंड दैट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बहुत सारी डिटेल है बेटा, मैं सिर्फ ओवरव्यू ले रहा हूं, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप कहीं पे भी इसको ये मत मानिए कि अपन एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। मेरा मेजर टारगेट है केस स्टडी एंड केस सिनेरियो, ठीक है। तो एक जल्दी से रिकैप में कराता हूं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जिस इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो, अगर उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है तो वो इंडस्ट्री आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है। कैसे पता चलेगा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है? मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल दिया हूं कि यहां पर अगर एक पावरफुल कस्टमर होता है जो डिक्टेट करता है कि भाई इसी प्राइस पर तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं दूसरे सप्लायर के पास चले जाऊंगा, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो शिफ्टिंग बहुत इजी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अगर बहुत ही लिमिटेड सप्लायर है मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे इंडस्ट्री में जिसमें मैं जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली वहां पे सप्लायर टर्म्स डिक्टेट करता है, मतलब वो आपको आपकी क्वालिटी आपके समय पर आपका प्राइस पर वो डिलीवर नहीं करेगा, सब कंडीशन आपको सप्लायर की मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं उस इंडस्ट्री में जाता हूं तो मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आएगी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो सप्लायर मुझे प्राइस कोट करेगा मेरी मजबूरी है वो लेना, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। तो हम चाहेंगे हम उस इंडस्ट्री में एंटर करें जहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर लो हो या मॉडरेट हो। अगर हाई कैटेगरी में जाता है तो मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। फिर क्लोज सब्सटीट्यूट अगर मेरे पास अवेलेबल है कि अगर ये प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करूंगा तो कस्टमर को नॉलेज है कि दूसरा अल्टरनेट उसके पास क्या अवेलेबल है, अगर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वहां पर फिर कंपटीशन बहुत होगा और शिफ्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी कंज्यूमर के द्वारा। आपने अगर थोड़ी भी प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर सीधा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसी इंडस्ट्री हमारे लिए फिर लेस अट्रैक्टिव रहेगी। फिर हम देखेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। एंट्री अगर इजी होगी तो कंपटीशन बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। एंट्री इजी होगी मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत लाइसेंसिंग का काम नहीं करना पड़ता है, बहुत इजीली आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, तो हम बोलेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत ज्यादा है अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है या गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कम है। जैसे पावर सेक्टर आप देखते होंगे बेटा, या एविएशन इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्री, यहां पे कभी भी इजी लाइसेंस आपको नहीं मिलता है, सालों लग जाते हैं, कन्विंस करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाके आप पावर सेक्टर में पावर जनरेशन या इधर जो बैंकिंग सेक्टर बोला, यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर बोला, जनरली आप देखते हो बेटा 4-5 सालों में एविएशन इंडस्ट्री हो गया, कोई एक आध कंपनी इमर्ज होती है, हर साल आपको 2-4 कंपनियां इस इंडस्ट्री में नई इमर्ज होते हुए नहीं मिलेगी। तो जितना ज्यादा टफ होगा एंट्री उतना हमारे लिए वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि फिर नए कंपटीशन हमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है, लास्ट मॉडल इसका, राइवलरी अमॉन्ग कंपटीशन। अगर वहां पे जो कॉम्पिटिटर इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि अगर कस्टमर मेरे पास आया है वो जो प्राइस बोलेगा मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाए, मतलब प्राइस वॉर है, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री में मुझे कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेरे पास यहाँ पे चॉइस है, मैं नई इंडस्ट्री में जाऊं या नहीं जाऊं, तो अगर ये पांचों फैक्टर मॉडरेट है या लो है तो फिर डेफिनेटली मैं उस इंडस्ट्री में जाना चाहूंगा। लेकिन अगर इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर क्या क्या, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है तो फिर ये इंडस्ट्री मेरे लिए कोई भी काम की नहीं है, इस इंडस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहूंगा। 2 क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड अपने पास। एक क्वेश्चन आपको दिया है आपके चैप्टर नंबर 1 में, जब ये टॉपिक आपको समझाया था उसी के जस्ट साथ में, और एक सेकंड एक छोटा सा केस सिनेरियो क्वेश्चन है जो आपको दिया है चैप्टर नंबर 13 में। दोनों केस स्टडी अपने पास अवेलेबल है। पहचानेंगे कैसे, समझ में आ गया इसको, कि जब भी हमसे पूछेगा कि क्या हमारा क्लाइंट इस नई इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो किन किन एरिया पर उसको चेक करना पड़ेगा ये इंडस्ट्री मेरे लिए अट्रैक्टिव है या नहीं। ठीक है, चलिए आइए बेटा इसमें आप केस स्टडी नंबर 9 एंड केस स्टडी नंबर 10, लास्ट 2 केस स्टडीज है इसमें।
केस स्टडी नंबर 9। तो बस लेक्चर आप यहाँ पे पॉज कीजिए और आप एक बार इस पूरी केस स्टडी को पढ़ लीजिए, फिर जैसे ही आपका पढ़ के हो जाए फिर आप रिज्यूम कीजिएगा, मैं आपको ये समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए बेटा स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन, मान के चल रहा हूँ आपने एक बार पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पैरा में बताता है हमारे क्लाइंट का नाम WG है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, अधिकतर ओनरशिप हमारे फैमिली मेंबर्स की ही है। हम आज की तारीख में कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाते हैं। अब हम चाहते हैं एक नई इंडस्ट्री में जाना जो पेपर ट्यूब की है। हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, हम चाहते हैं एक नई इंडस्ट्री में जाना जिसका नाम है पेपर ट्यूब। पेपर ट्यूब जो है इसमें आज की तारीख में आप देखेंगे तो हमारे कस्टमर की कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट, मतलब जो भी पेपर ट्यूब हमसे परचेज करेगा वो अपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में यूज करेगा तो उसके टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का 1 to 3% बिलोंग करता है। अगर हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं तो सेकेंड पैरा में बताता है लगभग 2 लाख रुपए का हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस 2 ही दिन लगेंगे हमें कोई भी बंदे को ट्रेनिंग देने के लिए ताकि इस मशीनरी को वो ऑपरेट कर पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पेपर यूज होता है इस पेपर ट्यूब बनाने में वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहता है। आगे आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 5 मेजर प्लेयर है मार्केट में जो पूरा ये मार्केट को गैदर करते हैं और ग्रोथ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3% से मार्केट ग्रो करता है। नेक्स्ट बता रहा है कि अब कुछ MNC प्लान कर रही है ताकि वो पेपर ट्यूब मार्केट में हमारे इंडिया में आए, ऑटोमेटेड मशीन्स के द्वारा वो बनाएंगे। एक और थ्रेट हमारे पास है, कुछ एक कंपनियां भी आ रही है जो अब हम बना रहे हैं पेपर ट्यूब, अब वो बनाएंगे प्लास्टिक ट्यूब, तो एक क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। तो क्या क्या चीजें बेटा, आज की तारीख में हमारा जो क्लाइंट है WDG ये बनाता है कार्डबोर्ड बॉक्सेस, अब चाहते हैं ये पेपर ट्यूब वाले मार्केट में जाना, तो कुछ इन्होंने एनालिसिस किया और क्या पाया, जो हमसे पेपर ट्यूब परचेज करेगा और जब वो अपने प्रोडक्ट में यूज करेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट में से पेपर ट्यूब की कॉस्ट 1 से 3% आती है। पहला पॉइंट बोला। दूसरा पॉइंट, पेपर ट्यूब की मशीन हमें खरीदना पड़ेगा जो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आएगी। थर्ड पॉइंट, पेपर ट्यूब की मशीन को ऑपरेट करने के लिए बंदों को सिर्फ हमें 2 दिन ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट, जो पेपर ट्यूब के लिए मटेरियल चाहिए वो हमेशा हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में होगा। फिर पॉइंट नंबर 6, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में 5 मेजर कॉम्पिटिटर है और एक कॉम्पिटिटर जिसके पास 24% मार्केट शेयर है और जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में वो 3% के आसपास है। अब कुछ थ्रेड बताया है, MNC भी इस मार्केट में एंटर करना चाहती है जो ऑटोमेटेड मशीन्स के द्वारा पेपर ट्यूब बनाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, आज हम पेपर ट्यूब मार्केट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं जबकि कुछ कंपनियां ऐसी है जो प्लास्टिक ट्यूब बनाएगी जो इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकता है। तो हमें बताना है क्या हमारी कंपनी को पेपर ट्यूब मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट पार्ट है ये हमें सजेस्ट करता है कि यहां पर हमें जो कंसेप्ट लगाना है वो लगाना है पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, है ना। तो देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर होगा बेटा, समय कम से कम दे देके अपन इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आप इसमें ये बताएंगे, कंसेप्ट बताना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। इसको आप लिखेंगे मैक्सिमम 3 से 5 लाइनों में, ज्यादा नहीं। तो जो पहला है पॉटर 5 मॉडल कंसेप्ट, आप इसको बताइए क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है कि आप जब ये जज करेंगे इंडस्ट्री में जाना है नहीं जाना है, इसके लिए आप ये मॉडल लगाइए। तो डेफिनेटली जब भी अपन कोई मॉडल सजेस्ट करेंगे तो अपन उसको पहले ये बताएंगे कि इस मॉडल का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल को डिफाइन करके एक्सप्लेन कीजिए, 3 से 5 लाइन मैक्सिमम। फिर आप बताइए कि अब इसमें 5 पॉइंट्स है जिनके आधार पे हम जज करते हैं। सबसे पहला न्यू एंट्रेंट, चूंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन बहुत कम है तो बहुत इजीली नए प्लेयर यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं और नए प्लेयर जितना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब ये इंडस्ट्री हमारे लिए लेस अट्रैक्टिव होगी। सेकंड आप बताइए, न्यू एंट्रेंट में आपने ये भी सुना है कि MNC एंटर करने वाली है जो ऑटोमेटेड प्लांट के द्वारा पेपर ट्यूब बनाएंगे। ये भी हमारे लिए न्यू एंट्रेंट्स में निगेटिव पॉइंट है कि न सिर्फ वो 5 लोगों से हमें कंपटीशन डील करना है बल्कि जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो कंपटीशन मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। तो यहां पे
अगर आप न्यू एंट्रेंट में देखेंगे तो निगेटिव जा रहा है, हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। चलिए सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। यहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बहुत ज्यादा है क्योंकि अल्टरनेट सप्लायर अवेलेबल है, और उसने उस पैरा में भी लिखा है जहां पे वो कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है कि 5 मेजर प्लेयर है, सभी के पास प्रोडक्ट मिलता जुलता है। मतलब एक जगह से अगर प्राइस का डीलिंग नहीं हुई तो कस्टमर इजीली दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण कस्टमर का बार्गेनिंग पावर बहुत बहुत ज्यादा है। जैसे आज की तारीख में बेटा कोई भी बच्चा सीए के लेक्चर्स अगर लेता है तो मेरा मानना है उस बच्चे का बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि नहीं तो भी कम से कम उसके पास 10 to 15 रेप्यूटेड वेबसाइट अवेलेबल है जहां से वो उसी फैकल्टी के वही लेक्चर बहुत इजीली बाय कर सकता है। पेमेंट मोड सबके पास वही फैकल्टी है, तो क्वालिटी तो डेफिनेटली कोई भी वेबसाइट से आप परचेस करो, क्वालिटी तो आपको वही डिलीवर होगी। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। इवन अगर हम भी ऐसा स्टूडेंट होते, 10,000 का प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, अगर कोई दूसरे वेबसाइट पे वो 9950 का है, सिर्फ 50 रुपए भी बच रहे हैं, तो भी डेफिनेटली मैं एज अ स्टूडेंट उसी वेबसाइट से परचेस करूंगा। तो इसको बोला जाएगा अल्टरनेट सोर्सेस बहुत ज्यादा है बच्चों के पास, जिसके कारण बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बहुत ज्यादा है। सेकंड, इंस्टीट्यूट ने दिया है बेटा, मुझे ये पॉइंट नहीं पता, लेकिन हमेशा मैं चाहता हूं कि मैं इंस्टीट्यूट का आंसर ही आपको समझाऊं। मेरा मन नहीं बोलता कि कोई बहुत मेजर पॉइंट है, ये बोल रहा है चूंकि इंस्टीट्यूट का जब आप आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि कस्टमर का मेजर बिलोंग करता है मेजर कॉस्ट, इसलिए बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। 1 to 3% कभी भी मेजर कॉस्ट नहीं हो सकती कस्टमर की, तो मुझे पॉइंट नहीं जमा, फिर भी मैंने यहां पे लिख दिया। तो दोनों पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अभी निगेटिव गए, न्यू एंट्रेंट बहुत इजी है, एमएनसी भी आ रहे हैं तो हमारे लिए इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि उसके पास वैसा ही क्वालिटी वो दूसरे कॉम्पिटिटर से परचेज कर सकता है, तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। नाउ सप्लायर, वो एक पॉइंट बोला था, इसमें हमें एक स्पेशल पेपर लगेगा जो हमेशा ही शॉर्ट सप्लाई में रहेगा। एक स्पेशल पेपर लगेगा जो हमेशा ही शॉर्ट सप्लाई में रहेगा, जिसके कारण यहां पर सप्लायर डिक्टेट करेगा टर्म्स, वो डिक्टेट करेगा प्राइस, जिसके कारण फिर मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो मैं कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट। अभी तक न्यू एंट्रेंट भी नेगेटिव पॉइंट गया, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी नेगेटिव गया, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी नेगेटिव गया, राइवलरी अमॉन्ग कंपटीशन, फिर से वही बात, शॉर्ट सप्लाई है बेटा, हर कोई चाहेगा कि इसको मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मिले, तो प्राइस ज्यादा से ज्यादा पे करके ज्यादा से ज्यादा मटेरियल रहेगा, तो यहां पे डेफिनेटली राइवलरी बहुत ज्यादा रहेगी बिटवीन द कॉम्पिटिटर ऑल्सो। एंड लास्ट, सब्स्टिट्यूट, एक बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके पास यहां पे आ रहा है, प्लास्टिक ट्यूब, जिसकी कंपेरेटिवली लाइफ भी आप देखेंगे, जो पेपर ट्यूब है वो बंदा 1 से 2 बार यूज कर पाएगा, जबकि अगर वही प्लास्टिक ट्यूब है तो डेफिनेटली वो मल्टीपल टाइम यूज कर पाएगा। तो अगर आप पांचों पॉइंट देख रहे हैं तो निगेट जा रहे हैं, तो फाइनली एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको देना पड़ेगा कि पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल के द्वारा तो हमें इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए, हमें इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो एक बार आप अपना पूरा होमवर्क करो, आप ये चेक करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान सुनिएगा, ये चेक करो कि आपको एग्जिस्टिंग जो आपका बिजनेस है कमर्शियल बॉक्सेस का, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का, उसका कोई सिनर्जी, उसका कोई बेनिफिट आपको इस बिजनेस में मिल सकता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर आप जाने का सोच सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो बता रहे हैं वो निगेट बता रहे हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको मोटिवेट करे कि नहीं चलो यार इस एरिया में अपन डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन बेटा, केस स्टडी नंबर 9 आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, जस्ट आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ पोर्टर्स 5 वैल्यू मॉडल। अब लास्ट केस स्टडी नंबर 10, एक केस सिनारियो बोलेंगे अपन, केस स्टडी तो नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा सा है। ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 13 में, पेज नंबर 14 में, है ना। चलिए पढ़ते हैं। अगेन रिक्वायरमेंट पार्ट 1 जो है ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, और रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 है ये आपका डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। आइए क्या बोल रहा है देखिए, इन द 5 फोर्सेस मॉडल। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको पहचानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कंसेप्ट अप्लीकेबल हो रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज वहां पे ये था कि हमें समय पर याद आना चाहिए कि 5 फोर्सेस मॉडल लग रहा है, और वो कैसे पहचानेंगे मैंने आपको लिखा चुका हूं। जब भी क्वेश्चन आपको पूछे कि क्या इस इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए, अट्रैक्टिव है या नहीं, तो आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, दैट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये क्वेश्चन मैं कंपैरेटिवली सिंपल मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे
कंसेप्ट का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्किल कंपेरेटिवली आप देखिएगा ज्यादा होगी। इन द 5-4-5 मॉडल, वन ऑफ द क्रक्स इज कंपनीज और डिवीजन कंपीट विद देयर बायर एंड सप्लायर। 5-4-5 मॉडल का एक क्रक्स इन्होंने निकाला और ये बोलते हैं कि बायर और सप्लायर आपस में कंपीट करते हैं। द सेम मॉडल can be used to evaluate the competitive environment of the division of large complex company. In such companies, some of the division may be buyer and supplier to one another. Chapter number 9 बोल रहा है एक ही डिपार्टमेंट, एक ही कंपनी के बाद दो डिपार्टमेंट है, तो उनमें से एक बायर डिपार्टमेंट होता है, एक सप्लायर डिपार्टमेंट होता है। This lead to management accountant becoming involved in negotiation, leading to the agreement of suitable transfer price between division, जो डेफिनेटली बेटा आपने चैप्टर नंबर 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। रिक्वायरमेंट पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं क्योंकि यही वो पॉइंट है जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। एक्सप्लेन हाउ द 5-4-5 मॉडल अप्लाइड इन अ रिलेशनशिप between supplier and buyer, which lead Michael Porter to reach a conclusion that companies compete with their buyer and supplier। मतलब ये बोल रहा है आप ये हमें प्रूव करके दो कि जो माइकल पॉर्टर ने बोला है कि बायर और सप्लायर आपस में कॉम्पीट करते हैं, मतलब एक अगर कमजोर है तो दूसरा फायदा उठाता है, दूसरा अगर कमजोर है तो पहला वाला फायदा उठाता है। ये आप हमें प्रूव करके दो कि कैसे एक मार्केट में बायर और सप्लायर, सप्लायर सप्लायर नहीं बोला बेटा, कस्टमर, बायर का मतलब कस्टमर और सप्लायर आपस में कंपीट करते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये वाला, क्योंकि जनरली यहां पे आपका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व है। आप पूरा स्टडी मटेरियल सर्च कर लीजिए, डायरेक्टली आपको कोई ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले आपने अगर 2-3 बार ये क्वेश्चन देख के नहीं गया बेटा और अचानक ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो मेरे ख्याल से टिपिकल होगा कोई भी एक बच्चे के लिए इसको अटेम्प्ट करना। तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो रिक्वायरमेंट पार्ट पहले समझ गए आप। रिक्वायरमेंट पार्ट है कि आपको ये प्रूव करके देना है कि माइकल पॉर्टर ने बोला है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है बिटवीन द बायर एंड सप्लायर, वो कैसे। तो आइए बेटे देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर है सॉल्यूशन देने का। आप बताइए प्राइस और क्वालिटी के बारे में। टोटल 4 हेडिंग में हम अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहला है प्राइस एंड क्वालिटी। अगर वो कस्टमर एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है या वो पावरफुल बायर है, पावरफुल बायर मतलब रिलायंस इंडस्ट्री से मुझे ऑर्डर मिल रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मुझे ऑर्डर मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा दे आर द पावरफुल बायर, क्योंकि इनकी अपनी ब्रांड इमेज है, रेपुटेशन है, बाद में मैं इसको बहुत ज्यादा यूज कर पाऊंगा। तो या तो लार्ज ऑर्डर है मतलब बल्क ऑर्डर है, या तो जो बायर है वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल का मतलब समझ गए, रिलायंस का मुझे ऑर्डर मिला है, टाटा कंपनी का मुझे, ताज होटल का मुझे ऑर्डर मिला है, तो ये बोला जाएंगे दे आर द पावरफुल बायर। तो यहां पर अब प्राइस और क्वालिटी में कंपटीशन होता है। ऐसे बायर जो हमें बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे बायर जो पावरफुल है, अब ये अपने पावर का यूज करते हैं अपने सप्लायर के ऊपर। बायर यहां पे फर्म पोजीशन में रहता है कि नहीं, मैं प्राइस तो आपको यही दूंगा लेकिन मैं क्वालिटी आपसे सुपीरियर चाहता हूं। मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपी चल रही है, लेकिन मैं चाहूंगा मैं भी आपको 10 रुपी दूंगा, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में मुझे क्वालिटी बेटर चाहिए। ये पहला बार्गेनिंग हो सकता है बायर के द्वारा। सेकंड बार्गेनिंग हो सकता है कि नहीं, मुझे क्वालिटी तो वही चाहिए जो मार्केट में चल रही है, जो आप बना रहे हो, लेकिन मैं प्राइस आपको मार्केट प्राइस नहीं दूंगा, मैं मार्केट से कम प्राइस दूंगा। तो यहां पे आप देखोगे तो वीटो पावर किसका रहा बेटा, बायर का, जो कंपीट कर रहा है किसके साथ, सप्लायर के साथ, क्योंकि उसे पता है वो अपने आप में एक पावरफुल बायर है या वो एक बल्क ऑर्डर प्लेस कर रहा है। सेकंड हम बताएंगे कंपटीशन क्यों बोला है उसने, रिलेटिव साइज ऑफ द पार्टीज। अगर मैं एज अ कस्टमर इतना गुड्स लेता हूं आपसे जो आपके टर्नओवर का एक मेजर पोर्शन बिलोंग करता है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एज अ कस्टमर आपसे इतना गुड्स लेता हूं कि अगर आप अपना टर्नओवर देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द टर्नओवर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो यहां पे बायर टर्म्स डिक्टेट करेगा। लेकिन अगर मैं एज अ कस्टमर आपसे इतने गुड्स लेता हूं लेकिन फिर भी आपके टर्नओवर का मैं स्मॉल पोर्शन ही आपको अकाउंट फॉर करता हूं, तो डेफिनेटली फिर मेरा एज अ कस्टमर बार्गेनिंग पावर नहीं होगा, मेरा सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि उसको पता है ये कस्टमर कोई मेरे से बहुत बड़ा टर्नओवर मेरे को नहीं देता है। थर्ड पॉइंट पे हम फोकस करना चाहेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट बायर और सप्लायर। अगर बायर के पास चॉइस है
कि भैया ये अगर मुझे नहीं देगा तो मैं दूसरे के पास जाके यही गुड्स खरीद सकता हूं, तो डेफिनेटली बायर के पास यहां पे बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। लेकिन यही चीज अगर बायर चाहता है कि नहीं भाई एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल है जो यही सप्लायर मुझे देगा, इसके अलावा किसी के पास भी मटेरियल नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली यहां पे फिर सप्लायर के पास एक एक्स्ट्रा एज होती है। तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितने लोग बेच रहे हैं इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि बायर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा कंपटीशन का या सप्लायर के पास रहेगा। एंड द लास्ट स्विचिंग कॉस्ट, वो कस्टमर मेरे साथ जुड़ा है, मैं एज अ सप्लायर उस कस्टमर के साथ जुड़ा हूं, क्या अब मैं उस कस्टमर को ना दूं तो मेरे पास कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल है? एज अ सप्लायर मैं सोच रहा हूं कि इतनी ही क्वांटिटी मैं दूसरों को दे पाऊंगा वही कॉस्ट पे। तो अगर मेरी स्विच करने की कॉस्ट इस कस्टमर से उस कस्टमर में बहुत कम है, तो डेफिनेटली फिर मैं एज अ सप्लायर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में वर्क करूंगा। इसी प्रकार से बायर, अगर मुझे पता है मैं इस बायर से ना लेके अब दूसरे बायर से लूंगा तो मेरी स्विच ओवर कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, तो मेरा बार्गेनिंग पावर एज अ बायर ज्यादा रहेगा। तो डिपेंड करेगा बेटा, अलग अलग मैटर है, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये कंफर्म है कंपटीशन जरूर होता है बायर और सप्लायर के बीच में, जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आपको एक पोजीशन देता है कि कौन यहाँ पे विनिंग पोजीशन में रहेगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बेटा, ये आपको बहुत मदद करेगा स्ट्रक्चर, ताकि आप कम समय में पूरी चीजें इस स्टडी मटेरियल की रिवाइज कर पाओ। और मैंने आपको नंबर भी दिया हूं कि इस ये वाली केस स्टडी आपको आईसीआई के इस पेज में मिलेगी, तो वहां से आप रेफर कीजिएगा और इस स्ट्रक्चर का हेल्प लीजिएगा। डेफिनेटली एक बार आपने वहां से पढ़ा और फिर बार बार इस स्ट्रक्चर से आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपका माइंड मैप तैयार होगा जो एग्जामिनेशन तक आपको एक क्वेश्चन रिटेन करा पाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट। कोशिश किया मैंने कुछ कंसेप्ट भी आपको पहले मैं रिवाइज करा दूं, नॉट इन डिटेल, जितना जरूरी है केस स्टडी के लिए, क्योंकि मेरा मेजर फोकस है पूरी केस स्टडीज पर कि केस स्टडी और केस सिनेरियो को कैसे और सिंप्लीफाइड में कर सकूं। और उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा इस स्ट्रक्चर का, जिसमें न सिर्फ आपको रिवीजन बल्कि एक माइंडसेट भी मिलेगा कि इसमें हमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 5 केस स्टडीज इन योर स्टडी मटेरियल जो अपन वहां पे कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।